Good afternoon, everyone, and welcome to the third day of this workshop on cloud computing. I think Ravikanji is there in the meeting, so Ravikanji, you take over the. A very good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. So we are going to start the session. So before starting the session, any questions, queries, doubts, anything? Excuse me, sir. Yes. Sir, in yesterday's session, like you have said that for starting cloud computing, first of all, we have to create an account in AWS. Mm-hmm. So, sir, while creating that account, it is showing that please enter your ATM details. So, sir, in case if any person doesn't have any ATM card, so how will you do that? Basically, you need ATM card first. It will ask. Yes, sir. Either you are creating a free tier account as well, Yes, sir. because it needs to authenticate you. So for that purpose, it asks ATM for that. So, but in case if any person doesn't have that ATM card, so sir, how will you create the account? For AWS without ATM card, I don't think it might give you the privileges. Because by default, if you ask about the free trial version as well, because you still have to provide some credit card or debit card information. You always have to provide some card details actually. Yes, sir. And if I'm not wrong, then I think, let me share my screen first, then I'll show you. There is one AWS Educate account, I guess. I haven't created the account there, but I know there is AWS Educate. So try login here and then see whether it is asking for the card details or not. Okay. Yes, sir. Because either you use a free tier or you use any AWS service, it will always ask you the credit card details or debit card details. So this is the platform where I think it might not ask, might not. I haven't created the account here, but you have to try it here. So shall we start? Any other questions? Any other queries? Anyone? So is your code executed till yesterday? कल तक जो हम लोगों ने किया था, आप लोगों ने execute करके देख लिया? वेबसाइट आप लोगों की हो गई थी अब? बताइए भाई, guys, please just give me a confirmation. कितने लोगों ने ट्राई किया था, कितने लोगों का हुआ? आई थिंक मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स का हो ही गया होगा. तो पहले मुझे ये बताएं कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव क्रिएटेड दी अकाउंट सक्सेसफुली. कितने लोगों का अकाउंट क्रिएट हो चुका है? ओके और हाँ जी, बाकी लोग भी बता दें. सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने क्रिएट किया है क्या अकाउंट अभी तक? सर भाई एटीएम कार्ड डिटेल्स आ रही थी इसलिए नहीं कर पाया मैंने. अच्छा अच्छा अच्छा. तो कितने लोगों ने और किया? बस जल्दी जल्दी मेरे को कंफर्मेशन दे. हाउ मेनी ऑफ यू हैव क्रिएटेड? प्लीज गिव मी कंफर्मेशन क्विकली.
2 ही लोगों ने क्रिएट किया अभी तक। अच्छा देखो, अगर आप कार्ड डिटेल्स ऐड करते भी हो तो इट डजंट मीन कि उसमें लाइक कोई ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो जाएगी, ठीक है। आप उसके साथ अनटिल अनलेस कुछ ऐसी एक्स्ट्रा छेड़खानी नहीं करेंगे। तो आई विल जस्ट सिंपली टेल यू दैट हाउ यू हैव टू लाइक मैनेज द AWS। तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी कोई उस पे कोई पैसे कटने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे 3-4 अकाउंट है AWS पे, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि भाई क्योंकि मुझे हर अकाउंट पे कार्ड भी ऐड किया हुआ है मैंने, तो वो किसी भी अकाउंट से पैसे तो नहीं काट सकता। अगर आपको प्रॉपर पता है कि हाँ किस तरह की सर्विसेज वो पैसे कट करने वाला है, तब ये पता होना ज़रूरी है एक्चुअली, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। तो एक बार ये भी मेरे को कंफर्मेशन दे देंगे कि कल कुछ लोग थे जो वेबसाइट चला चुके थे, और इज देयर एनीवन एल्स लाइक जिसने चलाकर देख लिया हो, जस्ट गिव मी अ कंफर्मेशन। और कोई है जिसने चलाकर देखा भाई अभी तक? ठीक है, एक तो आपने प्रथम ने एग्जीक्यूट किया है अभी तक, उनका वेबसाइट अप हो गई है। और एनीवन एल्स? कल मुझे 2-3 लोगों ने बोला था लास्ट में चैट विंडो पे कि किस किसने किया है। बताइए भाई बाकी लोग भी। गाइज इफ आई एम ऑडिबल देन प्लीज डू आंसर। चलो ठीक है, नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप लोग करते रहना इसको, बट मेक श्योर कि अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे रेगुलर तो ही बेनिफिट है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई अभी आप जो सेशन चल रहे हैं जस्ट लाइक आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, बट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो। मेक श्योर टू प्रैक्टिस ईच एंड एवरीथिंग। until unless you will practice it you will forget it in just 1 week। एक हफ्ते में आप ये सारी बातें भूल जाओगे जितना हम लोगों ने यहाँ पर सीखा है या सीख रहे हैं। ओके, सो गाइज मेक श्योर कि आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, तो आई थिंक वी कैन स्टार्ट द सेशन नाउ। सो लेट्स डू वन थिंग फर्स्ट। AWS। Okay, now the first thing today we'll be talking about, आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं एक बार मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ पहले। We'll be talking about firewalls, then AWS budgets. We'll be also talking about the different kind of users actually. Like there is a root user जो कि हम अपना account create करते हैं, so we are a root user. Then there is a IAM user as well. Okay, so what is that? We'll be discussing about that. Then there is a multi-factor authentication. Now, what is this multi-factor authentication? We'll be talking about that. Then we'll be talking about VPC. That is the virtual private cloud. Okay, and after that we'll be talking about the storage. And also we'll be making a static website. Yesterday we was like facing the issue to deploy the website, but today we'll see how to host static website using AWS. Okay, so this is the today's objective. ये हम लोग के आज के कुछ goals हैं, आज के objective हैं। Try करते हैं कि सारे objective आज में complete कर पाए हम लोग। Okay. So now, first thing we'll be talking about is the firewall. So what do you understand by firewall? Anyone from the participant? So it's a type of security. Okay, it's a type of security. And what security provides? किस तरह की सिक्योरिटी की बात चल रही है यहाँ पर? कौन सी सिक्योरिटी? Sort of user data that anyone cannot access the user data very easily.
बट स्टिल लाइक क्या मतलब अभी भी देर इज अ स्पेस कि जिससे हम समझ सकें व्हाट इज फायरवॉल, फायरवॉल क्या कर रहा है। और एनी अदर स्टूडेंट कोई भी बताना चाहे भाई वेलकम है सब लोगों के लिए, जो भी आंसर आपको पता है। It prevents us from accessing unauthorized websites and Block unauthorized user, security from malicious sites, okay. इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क को फिल्टर का काम करता है, मतलब उसको चेक करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन है जो आ रही है और जा रही है। बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये ना इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं कि हर किसी के सिस्टम में फायरवॉल होती है। अगर आप देखना चाहते हो तो अपने मशीन में जाकर सिक्योरिटी में जाकर देख सकते हो, ओके। तो विंडोज़ में देखना तो काफ़ी आसान काम है भाई, यहाँ पर आपको मिलेगा फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन। तो दिस इज दी फायरवॉल बेसिकली। तो अभी बात करेंगे फायरवॉल एग्जैक्टली क्या है। सपोज आपने इसको बंद कर दिया, तो जैसे ही आप इसको फायरवॉल को बंद करके आते हो ना, तो अभी हमारा क्या है, यहाँ पर वार्निंग आनी शुरू हो जाएगी। इट इज सेइंग योर डिवाइस में बी वल्नरेबल, कि अब आपके जो डिवाइस है वो इजीली कोई भी मतलब उसको आपकी जो मशीन है बेसिकली अब इस पर जो डिफेंड करने की वॉल थी वो खत्म हो गई है, तो इजीली कोई घुस सकता है। ठीक है, कौन घुसेगा? जो जिन वेबसाइट्स पे आप ब्राउज करते हो, जिनको आप एक्सेस करते हो, वो घुस सकते हैं जाकर। सो लेट्स टर्न इट ऑन, ओके। सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दिस फायरवॉल। अब ये फायरवॉल के बारे में हम लोग क्यों बात कर रहे हैं? हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि कल आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग एक सिक्योरिटी ग्रुप में गए थे। वी वॉज हैंडलिंग समथिंग इन द सिक्योरिटी ग्रुप, इफ यू रिमेंबर दैट। लेट्स गो टू द EC2 and from here we'll just go to our instance, any one of the instance you can go। और यहाँ पर ये जो सिक्योरिटी है ना, दिस इज व्हाट फायरवॉल इज। अब ये हमारी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट लेयर होती है जिसके बारे में हमें समझना है कुछ चीज़ों, ओके। तो बिफोर इवन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फायरवॉल वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द पोर्ट। सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट व्हाट इज अ पोर्ट, आप पोर्ट के बारे में क्या समझते हो? व्हाट इज अ पोर्ट? Let's see. Port is nothing, just a simple logical entity, okay। logical entity like एक काफी heavy word है logical entity बोलना। अगर हम उसको बहुत simple language में समझना शुरू करें, if I make it understand very simply, तो whenever you have some sort of a application that is running live or in local host, you'll be having some sort of a IP first। सबसे पहले आपके पास कोई IP होता है, उस IP के साथ एक पोर्ट नंबर आप अटैच करते हो हमेशा। There are always two things, one is IP and one is port। जो आपका URL होता है वो इस दोनों चीज़ों से मिलकर बनता है। तो पोर्ट नंबर इज समथिंग लाइक अ जिप कोड। सपोज आपका एक एड्रेस होता है और आपके एड्रेस पर आपका एक जिप कोड होता है, तो पोर्ट एक उसकी तरह है, ओके। तो व्हाट इज द रोल ऑफ पोर्ट हियर, ये हम लोग समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउ you have a client and you have a server। there is a client and there is a server। who is a client? client कौन है? client हम लोग हैं। आपके पास आपका मशीन है, आपके पास आपका लैपटॉप है, यू आर द क्लाइंट, ओके। सो नाउ इफ यू आर अ क्लाइंट, अगर आप एक क्लाइंट हो, आपको डेटा कौन देता है? हमेशा सर्वर देता है। एंड सर्वर इन राइट नाउ इन दिस केस, जो अभी हम लोग का AWS का केस है, इन दैट पर्टिकुलर केस लेट्स से सर्वर इज ऑन Linux, ओके। इन रियल टाइम सर्वर ऐसे ही किसी ऑपरेटिंग सिस्टम Linux जैसे ही किसी चीज पर होता है, ठीक है। अब Linux से जब आपको सर्वर की हमने बात की यहाँ पर, सो इट बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड यू SSH। हम लोगों ने SSH क्लाइंट बनाया था। सो आई होप यू गाइज रिमेंबर यस्टरडे वी क्रिएटेड वन SSH। तो हमने जब SSH क्लाइंट बिल्ड किया था, सो इट प्रोवाइडेड यू अ पोर्ट नंबर दैट इट ओपन्स ऑन। सो इट ओपन्स ऑन पोर्ट नंबर 22 बाय डिफॉल्ट। सो आई होप यू गाइज रिमेंबर दिस थिंग, yes or no? Yes, sir. yes, sir. Exactly, okay। Now there is another thing that was provided, HTTP, that we also created by adding extra rule, and it allows you to open on port 80, okay।
So now what does this mean? What actually we was doing here? We were saying that whenever a client will hit the server, I have two options. Either I'm going to open the server for that client if the port number is 22 or it is 80, something like that we created. Also there was a one command we executed on the terminal, netstat-n tlp, क्योंकि उसी कमांड के थ्रू हम लोगों ने देखा था कि हमारा किस किस के ऊपर क्या क्या पोर्ट नंबर रजिस्टर था. ओके, तो आपका nginx था जो कि इस पोर्ट पे चल रहा था. nginx was executing on this port और यहाँ पर हमारा by default ssh जो कि execute हुआ था. So if you want to understand this thing, so you can, like, there is a client is hitting you directly. अब client कहीं भी हो सकता है, क्लाइंट कहीं से भी आपको हिट कर सकता है. सोचो, जस्ट इमेजिन दिस थिंग कि आप एक सर्वर पे बैठे हो, क्लाइंट यहाँ पर है, क्लाइंट आपको इतनी इजीली हिट कर पा रहा है. बट टू मेंटेन अ सिक्योरिटी लेयर, आपकी इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को सिक्योर करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इंसर्ट one firewall. Okay, so you are not actually hitting the website directly. Whenever you are a client and you want to hit the server, so you never hit the server directly. आप कभी भी server को directly hit नहीं कर रहे हो. There is always a layer of firewall in between. हमेशा बीच में कौन है? एक firewall की layer है जिसको आप hit करते हो. Now firewall will handle like from which port you are trying to connect. Suppose it allows you, because हमने वहां पर जाकर क्या किया था, हमने एक पोर्ट अलाउ किया हुआ था, कौन सा? 80. Okay, so we can deny or we can allow. So basically what exactly it means कि अब जो client है वो firewall को hit करता है. Firewall will check कि whether I have to allow this client or not. So suppose it connects to 22 port जो आपने ओपन किया हुआ, लाइक अगर आपने इसको डिनाई कर दिया फायरवॉल के अंदर जाकर, सो नाउ इफ यू ट्राई टू कनेक्ट विद द पोर्ट नंबर 22, देन इट विल डिनाई. ओके, यू वोंट बी एबल टू हिट द सर्वर. व्हाई सो? क्योंकि आपने फायरवॉल से जाकर इसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए बोला. यू आर रेस्ट्रिक्टिंग इट. ओके, सो वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड that whenever we are trying to connect from the client to the server, the only thing that matter is this firewall and how this firewall is behaving. This firewall is actually like handling two things. What is the request coming from, where the request is coming, and then if I have to like make sure कि ये जो request हमारे पास है secure है and I can allow it or not. Okay, तो ये ना ऐसा है कि जैसे अगर आप लोग में से कोई किसी ने सोचा हैकर बनने का, किसी के दिमाग में आया कि भाई कभी कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में कि यार हैकर बनते हैं? ये सो एथिकल हैकर. हाँ, एथिकल हैकर. तो आपको पता है भाई एथिकल हैकिंग करने के लिए या हैकिंग करने के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका क्या होना चाहिए? टॉपिक कौन सा होना चाहिए? कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए? तो सिक्योरिटी, नेटवर्क. एग्जैक्टली, नेटवर्क एंड ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, ये दो चीजें. अगर आपको कभी एथिकल हैकिंग करनी है, हैकिंग करनी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू लर्न ऑलवेज इज द नेटवर्किंग एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम. यू मेक श्योर कि आप उसमें चैंपियन हो, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में, ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने में. क्योंकि फायरवॉल तोड़ना कोई आसान काम नहीं होता. फायरवॉल ही तो है बीच में जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें घुसने से रोकती है अलग अलग मैलिशियस वेबसाइट्स को. गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? नहीं तो देखो मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूँ. आप लोगों को पता होगा बहुत सारी टोरेंट की वेबसाइट्स होती हैं. देयर आर लॉट ऑफ टोरेंट वेबसाइट जहाँ से आप डायरेक्टली कोई भी मूवी या किसी भी तरह की कोई गेम्स डाउनलोड करते हो. जनरली ऐसा ही करते हैं ना आप लोग, भाई टोरेंट्स यूज करते हैं सब लोग पायरेसी के लिए. अब वो जो टोरेंट्स वाली वेबसाइट्स होती है, आपको पता है वो ट्रस्टेड नहीं होती हैं. ये बात सब लोग अच्छे से जानते हैं कि these websites are not trusted, but still we use them क्योंकि वो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं घुस सकते क्योंकि there is a firewall that is in between.
समझ रहे हो ये बात आप लोग कि आप ऐसे किसी के सिस्टम में डायरेक्टली एंटर करके उसको हिट नहीं कर सकते बिकॉज देयर इज अ लेयर ऑफ फायरवॉल। अब यही जो फायरवॉल की लेयर है AWS ने कहां पर सेटअप की हुई है, क्योंकि फायरवॉल बता रहा है कि आई हैव टू अलाउ द ट्रस्टेड यूजर एंड आई एम गोइंग टू ब्लॉक द अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो इसके लिए AWS ने क्या किया, सो देयर आर टू थिंग्स, देयर इज अ इनबाउंड कनेक्शन, लेट मी राइट इट अगेन, there is one thing known as inbound connection and there is another thing known as outbound connection। दूसरी चीज क्या होती है, outbound connection। तो आपके पास दो तरह की चीजें हैं। so we are talking about the firewall in AWS। तो इसने दो तरीके से बनाया हुआ है। तो what it says, क्या कहता है कि देखो जब कोई कनेक्शन बिल्ड होता है, आप यहां पर हो, दिस इज योर EC2 इंस्टेंस जो आपने क्रिएट किया था। When we create this EC2 instance, it makes sure that there is some sort of a firewall applied. What is this? This is my firewall. So this is actually the outbound connection. And when some client is going to connect with this, then it's a inbound connection. Okay. इसने जाकर क्या किया हुआ है, तो हमारे पास फायरवॉल के नाम पर क्या है वहां पर AWS में, there is a security group जिसको कल हम लोगों ने मैनेज करना सीखा था, थोड़ा सीखा था कि रूल्स कैसे ऐड करते हैं। सो एक्चुअली सिक्योरिटी ग्रुप एक्ट्स लाइक अ वर्चुअल फायरवॉल। ठीक है, ये क्या है, इट एक्ट्स लाइक अ वर्चुअल फायरवॉल। अभी अभी आपने जो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में देखी थी वो एक फायरवॉल थी आप लोगों के सामने। सो सिक्योरिटी ग्रुप इज एक्टिंग लाइक अ वर्चुअल firewall for an instance, for your EC2 instance, to control the traffic कि किसको मुझे अंदर आने देना है ट्रैफिक में और किस ट्रैफिक को बाहर जाने से रोकना है या अलाउ करना है। तो इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए वी नीड अ फायरवॉल। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज? ये बात समझ आई आप लोगों को? सिंपल थी बिल्कुल। तो यहाँ पर फायरवॉल के नाम पर आपको ये जो सिक्योरिटी ग्रुप मिलते हैं, दिस इज द थिंग दैट वी एक्चुअली हैंडल्स। ये है हम लोग का यहाँ पर फायरवॉल। तो आप यहाँ से जो कल हमने ऐड किया था TCP/80 प्रोटोकॉल, तो हमने बताया कि किसको अलाउ करना है, किसको अलाउ नहीं करना है। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं उसके बाद। अब अच्छा, ये भी आप देख सकते हो, आई टोल्ड यू अबाउट दिस इनबाउंड रूल्स एंड द आउटबाउंड रूल्स। तो दो तरह की चीजें, इनबाउंड एंड आउटबाउंड। इनबाउंड क्या है, जो क्लाइंट से आने वाले कनेक्शंस हैं, तो वो क्या आ सकते हैं, पोर्ट नंबर 80 आ सकता है, पोर्ट नंबर 22 आ सकता है। आउटबाउंड यानी कि विद इन द EC2 इंस्टेंस देयर इज ओनली वन रूल दैट इज डिफॉल्ट एडेड बाय इटसेल्फ। तो जब भी आपको 0000 लिखा हुआ मिलता है, इसका मतलब अलाउ ऑल द इंटरनेट कनेक्शंस। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ जाकर सपोज इफ आई एडिड दिस इनबाउंड रूल्स, कल हम लोगों ने जो ऐड किया था ना, वो था हम लोगों का ये। एंड व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब होता है ऑल इंटरनेट कनेक्शन, जितने भी कनेक्शन है सबको हमने अलाउ किया इंटरनेट से। नाउ इफ यू वांट टू स्पेसिफाई कि मैं जाकर एक IP एड्रेस, अपना खुद का IP एड्रेस सेट करना चाहता हूँ, सो लेट्स सर्च व्हाट्स माय IP। आप अपना IP सर्च कर सकते हो यूजिंग दिस व्हाट्स माय IP। आपको एक IP एड्रेस मिलता है, कॉपी दिस एंड नाउ यू कैन पेस्ट इट हियर। और आप इसको पेस्ट करके अब एक स्पेसिफाई कर दे रहे हो दैट दिस इज द ओनली IP नाउ दैट इज अलाउड विद इट। अब अगर आपने अपनी वेबसाइट को लाइव जब किया था कल, एंड नाउ इफ यू विल ट्राई टू एग्जीक्यूट इट, इन माय केस इट इज नॉट रनिंग बिकॉज ऑफ सम पोर्ट प्रॉब्लम्स एंड ऑल। ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट कि जब हम उसको लाइव कर रहे थे, जब हमने उसको एग्जीक्यूट किया था, गो टू द इंस्टेंसेस एंड हियर इन डिटेल्स, हमने इसको ओपन किया। लेकिन अभी हम लोगों ने, ऑब्वियसली मेरे सिस्टम में तो नहीं ओपन हो रहा है, तो यू हैव टू ओपन इन योर सिस्टम एंड इफ यू ट्राई टू चेंज द URL अ लिटिल बिट, तो आप वहां पर देखना शुरू करना कि वो चलता है या नहीं चलता है, जस्ट ऑब्जर्व दैट। तो आपने क्या किया इस बार, एक सिक्योरिटी में इनबाउंड रूल आउटबाउंड रूल में जाकर अपना एक रूल एड ऑन किया। सो दैट्स व्हाट बेसिकली वी डू इन फायरवॉल्स एंड ऑल। तो इन जनरल ये बेसिक बातें हैं फायरवॉल के बारे में, ठीक है। We don't have to like touch them in detail right now। हमें सिर्फ इतना समझना है कि यहाँ पर एक फायरवॉल है जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है, आपकी एक लेयर है जो आपको हैंडल कर रही है कि इनकमिंग ट्रैफिक मुझे कौन सा अलाउ करना है, किस ट्रैफिक को नहीं अलाउ करना है। ओके, so I hope it is clear to everyone। So this was a very basic thing that we learned till now।
Okay, so we just have to like go through with this basic introduction only. हमें इसके बारे में और ज्यादा भी अभी वापस आएगा ये, ठीक है, अभी इसके अंदर और जाएंगे, कुछ कुछ चीजें वापस आने वाली हैं. ओके, नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक दो चीजें और हैं जो अभी समझनी है. तो सबसे पहले अभी हम देखने वाले हैं AWS बजट्स. ओके, now what is this AWS budgets? So let me just write here AWS budgets. Now when we talk about this AWS budgets, what exactly it is? So whenever we talk about this AWS budgets, so we are going to understand that how you are going to set your custom budgets so that AWS will not charge extra any day or any time. क्योंकि हम लोग क्या है अभी स्टार्ट कर रहे हैं, लाइक हम लोगों को नहीं पता कि किस पर्टिकुलर सर्विस के लिए AWS कितना चार्ज करने वाला है. आपने क्या किया, आप डेटा स्टोर किए जा रहे हो, वेबसाइट होस्ट कर रहे हो, आप इंस्टेंसेस क्रिएट कर रहे हो, यू आर डूइंग दीज काइंड ऑफ स्टफ कॉन्टिन्यूसली. लेकिन आपको नहीं पता कि बजट कितना, मेरा बजट कितना है अभी और कितना उसमें मुझे और जरूरत है. तो इन सब चीजों के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द AWS budgets. So whenever you create a new AWS account, you are like first time you are in under a free tier. आप एक free tier के अंडर अपना एक अकाउंट क्रिएट करते हो हमेशा, ठीक है. लेकिन अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि जब भी मैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन्स करूं तो मेरे पास एक नोटिफिकेशन आ जाए कि मैंने इतना ऐड कर दिया है, इतना मैंने इसको यूज कर लिया, तो मुझे नोटिफाई करे. ओके, इट मस्ट नोटिफाई द यूजर कि आप इस बजट को एक्सीड कर चुके हो. सो इट विल स्टार्ट चार्जिंग, ये यहाँ से आपसे चार्ज करना शुरू करेगा. सो व्हाट यू हैव टू डू, you have to just go to the AWS and from here you can search for the budgets and go to the AWS budgets. AWS budgets पे चलते हैं. Let's see whether I have any budget. Yeah, so I can see there is a budget that I have already set here. मैंने already यहाँ पर budget set किया हुआ है. अब मैंने जो बजट सेट किया वो कितने का बजट सेट किया, आई जस्ट हैव सेट फॉर $1. मैंने एक $1 का बजट सेट किया हुआ है, जिसमें से मैं कितना यूटिलाइज कर चुका हूँ. आई हैव यूटिलाइज द 25% ऑफ इट. ओके, सो यू कैन सी देयर इज अ करंट वर्सेस बजट. तो आपने अगर $1 का था आपका बजट, जिसमें से आप 25% $0.25 यूज कर चुके हो. ओके, सो यू कैन लाइक लुक इनटू दिस मोर डिटेल. आप इसके अंदर डिटेल के अंदर जाकर देख सकते हो कि आपने क्या क्या किया. ये ग्राफ भी प्लॉट करके आता बताता है कि भाई आपका एक्चुअल बजट कितना था, कितना आप एक्सीड कर चुके हैं एंड ऑल. ठीक है, सो नाउ व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू क्रिएट अ न्यू बजट. तो जब भी मैं कोई यहाँ पर चीज क्रिएट करूँ, मैं उसके लिए चाहता हूँ कि आई मस्ट क्रिएट अ न्यू बजट. ओके, तो नया बजट कैसे क्रिएट करना है और उसको कैसे आपने ध्यान में रखना है, ये सारी बातें हम लोगों को समझनी है. प्लस यू हैव टू प्रोवाइड योर ईमेल आईडी so that on that particular email ID AWS will mail you. AWS आपको मेल करेगा कि ये है, इस मेल आईडी पर आपको मिल जाएगा कि यदि आपने अपना बजट एक्सीड कर दिया है. ओके, तो राइट नाउ अभी मैंने एक्सीड नहीं किया है, सो आई वोंट बी हैविंग एनी मेल्स. ओके, नाउ लेट्स गो टू द क्रिएट बजट. क्रिएट बजट पे चलते हैं. इफ यू वांट टू क्रिएट अ न्यू बजट, सो इट विल गिव यू दीज 4 ऑप्शंस, जिसमें ये बोलता है कॉस्ट बजट, यूजेज, रिजर्वेशन एंड सेविंग प्लान. तो इन जनरल बाय डिफॉल्ट हम लोग सेलेक्ट करते हैं कॉस्ट बजट, क्योंकि ये क्या करता है, मॉनिटर योर कॉस्ट अगेंस्ट अ स्पेसिफिक अमाउंट एंड रिसीव अलर्ट व्हेन योर यूजर डिफाइंड थ्रेशोल्ड्स आर मेट. तो ये कहता है आप एक थ्रेशोल्ड सेट करोगे, जब वो थ्रेशोल्ड पे हमारा बजट रीच कर जाएगा तो इट विल नोटिफाई मी, इट विल अलर्ट. ओके, एक है यूजेज, मॉनिटर योर यूजेज. कॉस्ट बजट क्या कर रहा है, इट मॉनिटर्स योर कॉस्ट. यूजेज बजट क्या करेगा, इट मॉनिटर्स योर यूजेज ऑफ वन और मोर स्पेसिफाइड यूजेज टाइप्स और यूजर टाइप ग्रुप्स एंड रिसीव अलर्ट व्हेन यूजर डिफाइंड थ्रेशोल्ड्स आर मेट. अगेन रिजर्वेशन बजट्स, it track the RI utilization और RI coverage associated with your reservation. तो इसमें कुछ ऐसी चीजें आती है जो databases and all से related है. Okay, saving plan budget track the utilization and coverage associated with your saving plans. But we have to get started with this cost budget by default. So let us click on set your budget. अब budget set करने के लिए it is asking me the name of the budget that you want to keep. Okay, so let's name it as my budget 2. Okay, so I have simply named it as my budget 2.
आफ्टर दैट इट आस्क यू कि आप उसको पीरियड वाइज मतलब लाइक मंथली, ईयरली, किस तरीके से उसको हैंडल करना चाहते हो. ओके, नाउ देयर इज ऑलरेडी अ मंथली सेट है, पीरियड में पहले से मंथली लिखा हुआ है, सो वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग. देन देयर इज अ बजट इफेक्टिव डेट्स, रिकरिंग बजट एंड एक्सपायरिंग. रिकरिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे ही एक पीरियड एंड होगा इट विल रिकर दी बजट्स, सो इट विल रिन्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथली बिलिंग पीरियड. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग. आप लोगों को समझ आया ना कि रिकरिंग बजट का मतलब क्या हुआ. ये सिंपली आपको बोल रहा है कि अगर आप इतने जिस डेट पे पहुंचोगे मैं अपने आप उसको रिन्यू करके आ जाऊंगा, जैसे आपका सब्सक्रिप्शन रिन्यू होता है, सिंपली वैसे. नाउ इट विल आस्क यू द बजट अमाउंट कि अब आप कितना बजट इसमें रखना चाहते हो. तो अभी हम लोगों ने $1 रखा था, यहाँ पे भी आई विल सिंपली कीप 1, सो दैट इज अगेन $1. तो मेरा जो बजट है वो सिर्फ कितना है अभी, $1. दैट्स इट. And you can even click here for the monthly budget planning, so it specify your budget amount for each budget period. Okay, तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा आउटकम दिखना शुरू हो जाता है. Okay, but I want to keep it fixed. मैं $1 फिक्स रखना चाहता हूँ. Now I hope it is also clear. Now you can just go to the configure threshold. अब आप threshold पे जा सकते हो और threshold पे जाकर आप बता सकते हो कि आपको नोटिफिकेशन कब चाहिए. ओके, व्हाट इट मीन्स इज कि नोटिफिकेशन कब चाहिए, मतलब कि अगर मैं इतने % बजट को क्रॉस कर जाऊं तो मुझे नोटिफिकेशन देखनी है. सो यू कैन राइट हियर लाइक 50%, तो आई विल सिंपली राइट हियर सपोज 50. So what it means is that this threshold is set based on actual cost when it is greater than 50%. तो ये बता भी रहा है आपको कि अब आपका जो नोटिफिकेशन आपको मिलेगी वो कब मिलेगी, जब आप $0.50 को यूज कर चुके होगे, बिकॉज योर बजट अमाउंट इज $1. ओके, सो आई कैन लाइक ये परसेंटेज आप कितना भी इसको कम ज्यादा कर सकते हो. सो आई एम सिंपली सेटिंग इट ऑन 35% कि मैंने इसको 35% पे जाकर सेट कर दिया है. ओके, now after that it is asking you to enter one email id, क्योंकि वो email id आप जो प्रोवाइड करोगे ये उस पर आपको नोटिफाई करने वाला है. so it is going to provide you the notification when you will exceed the 35%. जैसे ही आप 35% से एक्सीड कर जाओगे, यानी कि आप $0.35 यूज कर चुके होगे, जो भी आप email id यहाँ प्रोवाइड करोगे it is going to mail you on that. Okay, so I'm simply, let's say if I try to click on confirm budget, it will, if there is a threshold value, there is, okay, so I also need to provide one email ID then. Okay, so let me just write one email ID I have. So this is the email ID I am going to provide and I'll paste it here. Okay, and then I'm going to confirm the budget. अच्छा, इसके पास कुछ और भी options है, like there is Amazon सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, ये आपको SMS भी कर सकता है इफ यू वांट, और ये कुछ चैटबॉट पर भी अलर्ट कर सकता है. जैसे अलग अलग तरह के चैटबॉट्स होते हैं, स्लैक, चैट रूम्स, ये सब होते हैं. इट कैन इवन अलर्ट यू ऑन दैट. तो तीनों में से कोई भी एक आपको नोटिफिकेशन सेटअप करनी है. सो आई हैव जस्ट प्रोवाइडेड माय ईमेल आईडी एंड देन क्लिक ऑन कंफर्म बजट. दैट्स इट. नाउ फाइनली यू कैन रिव्यू जो भी आपने अभी तक क्रिएट किया था उसको रिव्यू करके आप यहाँ से क्रिएट करके आ जाओ. तो ये बहुत बहुत हम लोगों को ध्यान से करना होता है. So now you can see I have 2 budgets till now. Okay, so we have 2 budgets. So मेरा current versus budget ये जो मैंने अभी create किया, there is my budget. So we have these 2 things now. I hope it is clear that how we can simply create a budget and even like आप इसके अंदर और भी चीजें देख सकते हो कि मेरा budget का utilization कितना हुआ, कैसे हुआ, वो सब चीजें we can just go inside the details and look at the graph and all. सब कुछ हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा. You can download the CSV and you can mail it to your seniors. आप दिखा सकते हो कि भाई इस तरीके से हम लोगों की जो कॉस्टिंग है वो हुई है, इतना इतना हम लोगों का कॉस्ट क्या है. So I hope it is clear that how you can simply create your AWS budgets. Anyone, any question? कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट, कुछ पूछना है किसी को तो बताइए. तो जितने भी लोग अभी इस टेंशन में है ना कि क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ऐड करना पड़ेगा, तो ये इस चीज को बहुत ध्यान से समझे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ऐड करने से आपके पैसे नहीं कटने वाले. ठीक है, आपको बजट का ध्यान रखना, आप उसको कितना यूज कर रहे हो. यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड दैट. ओके, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू मेंटेन अ वेबसाइट? एक्चुअली इट डिपेंड्स.
ऐसा देखो कोई फिक्स तो नहीं होता ना, किसी किसी की वेबसाइट का देखो साइज ज्यादा होता है, किसी वेबसाइट का साइज कम होता है, तो आपकी वेबसाइट पे डिपेंड करता है कि वेबसाइट का साइज क्या है, क्योंकि आप एक स्टोरेज यूज कर रहे हो अमेजोन का। जैसे ना आज हम क्या करेंगे, एट द एंड हम एक वेबसाइट अपलोड करेंगे यहाँ पर और उसको लाइव कर देंगे। तो जब उसको लाइव करोगे तो आपको नजर आएगा कि ये जो मेरी पर्टिकुलर वेबसाइट है कितने एमबी की है। ओके, तो आपकी वेबसाइट के साइज पे डिपेंड करता है। ओके, लेट्स गेट बैक, वापस आते हैं। एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर क्वेरी, एनीवन? चलिए जी, तो फिर आगे बढ़ते हैं। The next thing we have to talk about is this multi-factor authentication. Okay, so let's talk about this. Okay, then. The next thing we have to talk about is multi-factor authentication. Now, what is this multi-factor authentication? AWS provides you the facilities like कि अगर आप एक root user हो, if you are a root user and you have to log in to the AWS account, तो क्या करना पड़ता है हम लोगों को ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम लोगों का एक आईडी है और एक पासवर्ड है जो किसी के साथ शेयर ना करें। ओके, इन केस इफ यू शेयर्ड योर आईडी एंड पासवर्ड विद समवन and now you are facing any difficulty कि आपने किसी को ID password share किया, they can access your account and all, there could be lot of things. So let's say I just sign out from here, यहाँ से sign out करते हैं and if I try to log back in, मैं वापस log in करने की कोशिश करता हूँ, so you will be able to see we have two type of user, there is a root user and then there is a IAM user. IAM user के बारे में अभी हम discuss करेंगे in upcoming session. Right now we are a root user. अब आप अगर एक रूट यूजर हो, आप नेक्स्ट करते हो, आपका जो भी ईमेल आईडी है एंड वट एवर द पासवर्ड इज, स्टिल देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ऑथेंटिकेशन वी हैव टू राइट हियर। 247, I think it is 6, then SS, and it might be a capital S. Let's see. No. Refresh it again. Very difficult to like write this code. P46PB8. Then again submit. Okay, now we have to write our password only. So if I'm not wrong, then this is my password. No, this is not. Let me try this. I think this is the password. It is again asking this and P864D. This is the problem. Like whenever you are trying to log in, what was the password? Let me just recall the password and enter here. And let's try to sign in now. Again, it is W7CWRF. And submit. Okay, so I think I forgot my password now. So let's click on forgot password. It will mail me on my email ID a link. So let's see. Refresh it. So we have 7. This is 7C83M2. Then send email. So it will send you one email, and on that mail I'll be able to reset my password actually. Okay, so there are few things that I can show it to you, like let's go to the Gmail so that we can have a look like what are the different things going on. अभी हम लोगों को दो एक अलग अलग मेल्स नजर आनी शुरू होंगी। जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, एक अपना बजट सेट किया था और बजट सेट करते इट जनरली सेंड यू अ मेल, सो यू कैन सी हियर। सो AWS बजट नोटिफिकेशन, ये देखो आपको मेल आ जाती है इमीडिएट जैसे ही आप बजट को क्रॉस करते हो। हम लोग का बजट था $35.35, इट इज अभी एक्चुअल अमाउंट कितना हो चुका है 0.59, सो दैट्स व्हाई आई हैव दिस मेल हियर। ओके, so now I have to go inside this and reset my password. So let me set a new password here. So
Just a second, guys. Okay, give me a minute. Okay, so I just have reset my password. Let's get back. Okay, so let's get back here. वापस आते हैं. तो what actually we was trying to do here is कि जो भी हम लोगों का अब बेसिक पासवर्ड हम लोगों ने सेट किया होगा, we was trying to manage one thing कि अभी आपने देखा एक आईडी पासवर्ड तो था, ठीक है. सो इफ आई हैव आईडी एंड पासवर्ड देन आई जस्ट हैव टू डू वन थिंग कि मुझे जाकर उस पर लॉग इन करके आना होता है. दैट्स इट. इतना काम हम लोग को करना था. अब मैंने क्या बोला कि इफ आई चलो फॉरगेट तो नहीं, इफ आई शेयर माय ईमेल आईडी एंड पासवर्ड विद समवन, अगर आपने क्या किया अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड किसी को भी शेयर किया तो उसके ऊपर आप लोगों ने क्या करना होता है. देयर इज अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द AWS that is known as MAF, that is आप उसको बोल सकते हो भाई, मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है, that is multi factor authentication, that is MFA. okay, तो लॉग आउट करना ही हम लोग को भी काफी भारी पड़ सकता है. तो these are the kind of problems you can face. okay, then आगे बढ़ते हैं. So let's see how we can set our password, how we can set our multi-factor authentication here. Multi-factor authentication set करने के लिए we have to go in the services, and in the services we can simply search for the, in fact instead of searching anything, just click on here and go to the my security credentials. okay, तो आपने कुछ नहीं करना, सिंपली माय सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करना है. इट विल रीडायरेक्ट टू यू दिस पर्टिकुलर पेज नोन एज IAM मैनेजमेंट कंसोल. यहां जाकर आपने क्या करना होगा, व्हाट यू हैव टू डू इज गो इनसाइड दिस मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड यू हैव टू एक्टिवेट MFA. ओके, तो MFA का मतलब क्या था, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसको आपने एक्टिवेट करना है. सो इट इज गोइंग टू प्रोवाइड यू वर्चुअल MFA डिवाइस. ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप कभी किसी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो या कुछ भी करते हो तो यू जनरली गेट अ OTP. आपको OTP मिलता है हमेशा, तब जाकर वो चीज सक्सेसफुली आपकी जो परचेज होती है. सेम थिंग, समथिंग लाइक दैट वी हैव. हम लोगों के पास क्या होगा, एक वर्चुअल कोड होगा अभी. सो इफ आई क्लिक ऑन कंटिन्यू यू विल बी एबल टू सी दिस QR कोड. तो ये क्या करेगा, जैसे हम शो QR कोड पे क्लिक करते हैं इट विल शो यू दिस QR कोड. अब ये वो QR कोड होगा हम लोग का जो हमें स्कैन करना है. नाउ यू मस्ट हैव सम मोबाइल ऐप, आपके पास कोई मोबाइल ऐप होनी चाहिए जिससे जाकर आप इसको स्कैन कर सकते हो. तो स्कैन करने के लिए अलग अलग तरह की ऐप आती हैं. गूगल एप्स भी आपको प्रोवाइड कर, गूगल आपको एक अच्छी खासी एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है, गूगल ऑथेंटिकेटर आई गेस. तो व्हाट वी विल बी डूइंग इज आई विल बी यूजिंग वन ऑथेंटिकेटर. So simply search for Authenticator plugin. That is a plugin provided by Google Chrome. यहाँ जाकर इसको इंस्टॉल करते हैं. So simply add to the Chrome. Okay, add extension. And what it is going to do when you will be when it will be installed successfully. So let's go here and this is the authenticator here. You can see there is a authenticator. Okay, now if we have this authenticator, what we have to do is next click here and click on this edit, then click on this plus, then click on scan QR code. Manual entry करते अगर हम लोगों को कोई OTP जैसी चीज मिलती तो. Okay, what we have to do is we have to scan this QR code. तो ये जो QR कोड है इसको सेलेक्ट करना है बेसिकली हम लोगों ने. जस्ट सेलेक्ट दिस QR कोड प्रॉपर्ली, दैट्स इट, एंड इट इज लाइक हैज बीन एडेड सक्सेसफुली. क्लिक ऑन ओके. आफ्टर दैट you have to go again to your authenticator. It will generate this number.
Okay, so always remember ये इसने नंबर जो जनरेट किया है, let's write it here. So this is 844682. तो ऐसा नहीं है कि मैं लिखूंगा वो तभी मुझे याद रहेगा, ठीक है. अब कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद ये बदल गया. This is the second number. Also write this 446223. So these are the two numbers that you have to keep with yourself. अगर आपको सक्सेसफुली लॉगिन करना है तो पासवर्ड के अलावा फिर आपको ये भी चाहिए होगा. So the first number is this. So I'm going to copy it and paste it here. Second number is this. So I'm going to copy it and paste it here. And then assign MFA. That's it. Now close it. So finally we are done. We have created one multi-factor authentication. And now what is the benefit of it? अब हम अगर साइन आउट करते हैं, मैं अगर लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करने की कोशिश करूंगा, सो दिस टाइम इट विल आस्क मी द मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड. Okay, if you want to see, then I'm just going to sign out. And then we have to log back in. Again, it is going to create the CAPTCHA. That is very hard. Let's refresh again, and I don't know what it is. So I think we can write this GP76F, and I think it's a capital Y. No, it's a small y. Then I try to submit it. Now we have to set the password. Now it will ask you this MFA code. So I hope you are getting this thing, that what exactly we are doing here and what it is expecting now. It is expecting to give this MFA code, that is the multi-factor authentication code. Now what was this code? You can just copy it from here. So I'm just copying the first code and paste it here, then submit. Authentication failed. Not again, please. Ravi @DEV. I have to enter what the password is. So B22TC2, and then let's try to submit again. Let me see the authentication code, what it was. We have written, okay, so it is 64. It is changed. Now let's do one thing again. I'm going to write the password and do the sign in. Now let's see the authentication code from here. यहाँ से देख लेते हैं एक बार. So it is 736368. 736, and after that what it was? 368. Submit. Okay, now you can see how secure it is. आप देख सकते हो कि सबसे पहले आईडी पासवर्ड तो चाहिए, बट उसके अलावा हम लोगों को ये भी प्रोवाइड करना पड़ता है, दैट इज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन. सो आई होप इट इज क्लियर टू यू दैट व्हाट एग्जैक्टली MFA मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज एंड हाउ टू सेट अप दिस थिंग. एनीवन, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? पूछना है किसी को कुछ यहाँ पर? सर जो ये MFA कोड था सर, ये चेंज होता है बाद में या यही कांस्टेंट रहता है? चेंज हो जाता है यार ये ना. अब इसीलिए मैंने बताया ना, ऑथेंटिकेटर को अपने पास रखना है, फिर वहां से आपने देखकर डाल देना है. यस सर. Okay, so I hope it is clear. Now the next thing we are going to talk about is the IAM user. Now what is this IAM user? IAM user क्या होता है? We are going to talk about this thing. Okay, so first of all, IAM, when we talk about this IAM, it stands for Identity Access Management. Now what exactly this thing is? When we sign out and when we try to log in, आप लोगों ने देखा होगा वहां पर दो ऑप्शन. There was one root user and then there was one this IAM user. वहां पर दो ऑप्शंस थे हम लोगों के पास. तो ये जो IAM user है,
this user will be maintained by you, let's say. Okay, तो हम क्या कर सकते हैं, suppose you are some sort of a head of a company, आप किसी कंपनी के हेड हो, आप रूट यूजर हो या फिर आप एडमिन हो, so you want to provide some access to the your like different users as well or your employees, कुछ credentials आप उनको provide करना चाहते हो ताकि वो लोग भी उस पर काम कर सकें. Okay, you want to assign some roles to them. तो अगर हम यहाँ पर एक IAM यूजर क्रिएट करते हैं, that will be created by me, मैं क्रिएट करूंगा एक IAM यूजर, और उस यूजर के जो एक्सेस होंगे, जो रोल्स होंगे, वो हम डिफाइन करके आ सकते हैं इसके अंदर. ओके, सो it allows you to manage users and their level of access to the AWS console. Okay, so I hope this is clear that what is IAM. अब IAM के क्या क्या रोल्स हो सकते हैं वो भी हम देख कर आते हैं. So what you need to do is again get back to this AWS management console, और यहां से हम लोग सर्च कर लेते हैं IAM, that is the manage access to AWS resources. Let's click here and it will redirect you to some IAM management console. Okay, now we are redirected here. ये हम लोग का डैशबोर्ड है IAM का. So we can see user group 0, user 0, roles 2, हमारे पास कुछ इस तरह का अभी अवेलेबल है. ये सब इसके अंदर जाकर देखें तो दो तरह के रोल्स है. Simply let's click on users first. लेफ्ट साइड में आपको नजर आएगा there is a users and I don't have any users right now. मैंने अभी तक किसी को भी कोई रोल असाइन नहीं किया है. ओके, सो आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग कि अगर हम लोगों को एक यूजर क्रिएट करना है, सो फर्स्ट गो टू द IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट. यहां से आप यूजर्स में जाओगे एंड फ्रॉम हेयर आई कैन ऐड और डिलीट और मैनेज द यूजर्स. मैं उनको क्या क्या रोल्स असाइन करना चाहता हूँ, इट्स अप टू मी नाउ. So I just have clicked on add user. Add user पे क्लिक करने के बाद it is asking you the user name, कि उस यूजर का नाम क्या आप रखना चाहते हो. So I am just naming the user as John. Okay, it's a dummy user we are creating. Now the second thing is access type. अब access type में हम लोगों को दो तरह के access हैं. एक है programmatic access, एक है AWS management console access. This is the access you have to provide. Okay, अगर आप प्रोग्रामेटिक एक्सेस देते हैं तो अनेबल्स एन एक्सेस की आईडी, सीक्रेट एक्सेस की फॉर AWS API, CLI, SDK एंड अदर डेवलपमेंट टूल्स. ये सब डेवलपमेंट टूल्स होते हैं आपके. तो अगर ये वाला एक्सेस प्रोवाइड करना है तो यू हैव टू क्लिक हियर. बट बेटर राइट नाउ कि हम उसको AWS का मैनेजमेंट जो कंसोल जिस पे हम काम कर रहे हैं, मुझे सिर्फ उसका एक्सेस देना है. सो आई विल सिंपली क्लिक हियर. आफ्टर दैट इट इज आस्किंग कि जब वो यूजर लॉग इन करेगा तो उसको पासवर्ड ऑटो जनरेट करके देना है या कस्टम आप बताओगे कि क्या पासवर्ड उसको एंटर करना है. अगर आप ऑटो जनरेट पे क्लिक करते हो तो जब यूजर लॉगिन करेगा ना तो उसको ऑप्शन मिलेगा पासवर्ड सेट करने का. अगर आप ये नहीं चाहते हो, यू वांट टू गिव हिम अ कस्टम पासवर्ड, देन यू कैन क्लिक हियर. ओके, सो लेट्स राइट हियर समथिंग John. I think we can do this show password. Okay, so no, I don't have to show the password. We can write here John 123. Okay, so I have just created one password. Okay, 456. So I have created one password, John 1234556, something like this. Now after that we have to go to the next permissions. It will ask you to save this user as well or not. So okay, let's save it. So finally we are here. We have created one IAM user जो हम लोगों को भी क्रिएट करना था. यूजर हम लोगों ने क्रिएट किया, पासवर्ड भी हम लोगों ने उसका सेट किया है. आफ्टर दैट यू कैन इवन अटैच एग्जिस्टिंग पॉलिसीज. लाइक कुछ पॉलिसीज होती है, आपको अलाउ करना है कि मुझे उसको किस किस चीज का एक्सेस प्रोवाइड करना है. ओके, व्हाट आर दी एक्सेस दैट आई हैव टू प्रोवाइड टू हिम. मुझे उसको क्या क्या एक्सेस प्रोवाइड करना है यहां पर मुझे देखना है. दीज आर दी ऑप्शंस वी कैन सी. So I am just going to click on the first one. आप सिर्फ उसको administrator access पे click करके आ जाओ. That's it. And then next tags, next review, and that's it. And then you have to create the user, I guess. Yeah, I think we are done. Yeah, we are done. That's it. We have to now create the user. Okay, so I hope it is clear to everyone now. We have finally created one user here, and if you will go back to the IAM, you can even copy this URL. So you have to share this URL, and I'm going in a private window, incognito mode.
here I will paste this URL, hit enter. यहां जाकर हम लोग को क्या करना है, ये हमारा AWS का आईडी पासवर्ड वो हमसे पूछने वाला है. सो आई जस्ट हैव टू सी, आपको पहले से एक आईडी मिली है. ओके, यू आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड विद दिस आईडी. ये हमने आईडी जनरेट नहीं की है, खुद जनरेट हुई है. द यूजर नेम वाज जॉन एंड द पासवर्ड दैट आई सेट वाज, आई थिंक this was the password. Let's try to sign in now. Okay, so okay, there is one mistake we did there. हम लोगों ने एक छोटी सी वहां पर मिस्टेक की है, इसकी वजह से हमसे पासवर्ड पूछ रहा है. लेट मी शो इट टू यू. ये नहीं आना चाहिए था, ये क्यों आया? लेट मी शो दिस एज वेल, ताकि इन फ्यूचर ये ना आए. ओके, तो whenever you are creating a new user, जब भी आप एक यूजर क्रिएट करते हो, ऑलवेज रिमेंबर, सपोज आपने ये सेट किया हुआ है यहाँ से and the username is X. Now, when you have a custom password, there is an option that we forgot to uncheck. हमें ये चेक नहीं करना, ध्यान रहे. So always remember to uncheck this. So user must create a new password to next sign in. No. तो अब उसके बाद यूजर से वो पासवर्ड नहीं मांगेगा. तो अभी क्या करना पड़ेगा मुझे? I have to set up password. So what was the previous password? I have to write it again. Okay, so let's copy this, paste it here, confirm password changes. Password do not conform to account. Okay, this is the last thing actually you have to do. I'm not going to change the password again and again for that, but this was the last thing. इतना हम लोगों को करना है बस, that's it. And after that the user was created successfully. You can log in with that particular user. उसके साथ आप log in कर सकते हो easily. Okay, so I hope it is clear to everyone. Yes, sir. And the same thing you can do for the this new user जो आपने अभी अभी क्रिएट किया है. इसके लिए भी जाकर आप ये एक अपना सेट करके आ सकते हो कि उसको आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करना है. ओके, दिस इज ऑल्सो अ थिंग दैट यू मस्ट डू. ये भी आपको करना चाहिए. ओके, so I think now so far we are clear with this thing, that how to create the new user and how you are going to log in with that. आप उसके साथ log in कर सकते हो, बस आपको उसका पासवर्ड सेट करना था, but we don't have to set that password. अगर हम पहले ही उसका ध्यान रखें that we must check that particular box, uncheck that box. Okay, so that's it for this particular part कि हम लोगों को किस तरीके से यूजर क्रिएट करना होता है. So can we delete the user? बिल्कुल डिलीट कर सकते हो. अब आप यहाँ पर जाओ, सॉरी आप यहाँ पर जाओ, IAM, just go here and from here just go to the users, और यहाँ से यूजर नजर आना शुरू हो गया. इसको टिक करते हैं, यहाँ पर आ गया डिलीट, देखो आपके पास. Yes, sir. बस यहाँ से डिलीट हो जाएगा. ओके, Yes, sir. और anyone else, any other questions? यहाँ तक क्लियर एक बार आप लोगों को? So please give me confirmation everyone if it is clear. Yes, sir. Clear. बाकी लोग भी एक बार मेरे को confirmation दे दे भी. Okay, so I think we can move then. आगे बढ़ सकते हैं अब हम लोग. तो okay, so now we know what is this IAM. The next topic we are going to talk about is VPC, that is the Virtual Private Cloud. One of the most important topic in AWS. Okay.
So we are going to talk about this virtual private cloud. So let's see what exactly this thing is. नाम से समझ आता है थोड़ा बहुत वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, लाइक जो नाम है उसी से हमें क्या क्या समझ आ सकता है. व्हाट आई कैन जस्ट अंडरस्टैंड, वर्चुअल तो हम अच्छे से समझते हैं व्हाट एग्जैक्टली वर्चुअल मींस. देन इट इज प्रोवाइडिंग यू सम सॉर्ट ऑफ अ प्राइवेट क्लाउड. ओके, तो इसको ऐसे समझ के चलना है हम लोगों ने दैट ए Amazon VPC क्या करता है. इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो, इट्स अ प्राइवेट नेटवर्क. ओके, इट्स अ private network that AWS is providing you for AWS cloud infrastructure. Okay, security is like one of the best security it provides because it is completely handled by Amazon. Okay, तो सबसे पहले बात करना शुरू करते हैं Amazon VPC, exactly उसको रिलेट करना है हमें कि होता क्या है. अंडरस्टैंड दिस थिंग बाय लाइक एक स्टोरी की तरह समझते हैं. सपोज you have to shift yourself to some place. आपको किसी जगह पर शिफ्ट करना है खुद को भी. So there is a home, there is a house that you have purchased. आपने कोई एक आप किसी घर में रहते हो भाई. यहाँ पर आपने क्या किया, आपने इस घर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ओके, so what you just did is you divided this home in different parts. आपने एक पार्ट बनाया ये, एक पार्ट बनाया ये. ओके, सो लेट्स से आपने इस घर को दो अलग अलग पार्टीशन कर दिए. ठीक है, अब इसी को ना आपने इमेजिन करते चलना है पैरेलली. सो दिस इज यू लिविंग इन अ हाउस. पैरेलली आई एम क्रिएटिंग वन अनदर बॉक्स एंड इन दिस बॉक्स will create two different servers. लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि ऐसा समझते हैं कि आपको क्या करना है, आपको माइग्रेट करना है. आपने माइग्रेट किया एक जगह से दूसरी जगह, उस जगह को आपने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया. ठीक है, कि मैं चाहता हूं कि मैं कंप्लीटली उस घर को ऑक्यूपाई ना करूं, सो आई हैव जस्ट ऑक्यूपाइड वन सिंगल प्लेस. ठीक है, जो इसको ध्यान से समझते चलना. तो ऐसे ही साइड बाय साइड क्या है, दिस इज द Amazon VPC. Amazon का VPC भी क्या है, उसके अंदर क्या होता है कि लाइक इफ यू हैव मल्टीपल सर्वर्स, आपके पास अलग अलग तरह के सर्वर्स हैं, तो आपको ये भी सोचना है मुझे एक लोकेशन पे कितने सर्वर्स को एडजस्ट करना है. ठीक है, द लोकेशन वेयर लाइक वी कैन लॉन्च इन AWS. ओके, तो अब सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा कि एक घर में आपने उसके दो पार्टीशन किए. आफ्टर दैट आई एम जस्ट नेमिंग इट एज द partition 1 and this is going to be my partition 2. Okay, पहले आप दो अलग अलग घर थे सपोज आपके पास, but now you have one single home and you have just created the partition of it. सपोज आप एक जगह आप रहते हो, दूसरे को आपने रेंट पे दे दिया. जनरली what people do, ऐसा ही करते हैं हम लोग भी. तो ऐसा ही कुछ AWS के अंदर भी हम लोग को रिलेट करना है. What it is going to do here inside the box is it is going to create two subnet. So this is the subnet. ये होता है हम लोगों का subnet. This is subnet 1. This is subnet 2. So that's what subnet is. तो अब हम क्या कर सकते हैं कि एक हमारे पास कंप्लीट सर्वर रखने के लिए कोई पर्टिकुलर लोकेशन है, उसको हमने पार्ट्स में डिवाइड किया. तो अब हम ऐसा कर सकते हैं, सबनेट 1 के अंदर हमारे सपोज 2 सर्वर हैं, सबनेट 2 के अंदर हमारे 3 सर्वर हैं. ओके, तो अब सबनेट क्या होता है, सब इंटरनेट बेसिकली. अब इतना करके हम लोगों को यहाँ तक ये रिलेट करना है. ठीक है, कि अब अगर आपने एक होम लिया, उसको पार्टीशन किया, आप रहते हो इस जगह पर, इसको रेंट पे दिया हुआ है, यूटिलाइज एक ही कर रहे हो. अब ऐसे ही हमारा जो VPC है वो कैसे काम कर रहा है. इनसाइड द VPC वी हैव टू सबनेट, एक सबनेट 1 एक सबनेट 2, एक के अंदर 2 सर्वर एक के अंदर 3 सर्वर, समथिंग लाइक दैट. नाउ यू वांट टू ऐड वन लेयर ऑफ सिक्योरिटी. अब इसके ऊपर आप क्या करना चाहते हो, एक सिक्योरिटी की लेयर ऐड करना चाहते हो. तो सिक्योरिटी की लेयर ऐड करने के लिए आपने क्या किया, यू जस्ट थॉट अबाउट दिस थिंग कि अगर मुझे सिक्योरिटी चाहिए ना, तो मैं यहां से एक दरवाजा बना देता हूं. ओके, सो व्हाट आई जस्ट थॉट अबाउट इज कि लेट्स क्रिएट वन इनपुट एंड वन आउटपुट. दैट्स इट. हमने सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए क्या किया, हमने जाकर एक इनपुट और एक आउटपुट बनाया यहां पर. इतना काम हम लोगों ने किया है. सो
इमेजिन दिस थिंग एज कि इस घर में आप यहाँ रहते हो, आपने सिर्फ एक एंट्रेंस बनाया और एक यहाँ पर बनाया हुआ है एग्जिट करने के लिए, या एंट्रेंस इट कुड बी, बट आपने पार्टीशन 2 के लिए कुछ भी नहीं बनाया. So in partition 1, you can go in, go out, whatever you want to do. But in partition 2, there are no doors. आप अंदर बाहर कुछ नहीं कर सकते, आप घर के अंदर हो. Simple. Okay. Similarly, हम यहाँ पर भी ऐसा कर सकते हैं कि like there is a incoming door. यहाँ पे कोई incoming door है आपके पास. This is, and there is some, this door I am talking about actually. तो ऐसे ही मेरे पास जो सबनेट हमने बनाया, सिर्फ एक ही रास्ता हमने दिया है ट्रैफिक को आने और जाने के लिए. हमने सबनेट 2 को कोई उसको इसलिए नहीं टच कर सकता. सपोज आई वांट टू मेक द थिंग्स कीप प्राइवेट हियर, मुझे कुछ भी वहां और सिक्योरिटी चाहिए, तो इसके लिए ये क्या प्रोवाइड करता है, एक सिक्योर लेयर प्रोवाइड करता है आपको. तो जो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, एक राउट क्रिएट करते हैं सर्वर्स के लिए कि फ्रॉम सबनेट हम कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट से. ओके, आपके पास जो भी इंटरनेट है उससे आप कनेक्ट करना चाहते हो, आप डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर रहे हो, यू आर कनेक्टिंग यूजिंग दी सबनेट्स. सबनेट 2 के पास कोई राउट नहीं है तो वो इंटरनेट तक रीच नहीं कर सकता. सो दैट्स हाउ वीपीसी इज डिवाइडेड इनटू 2 सबनेट, दैट इज सबनेट 1 एंड दी सबनेट 2. अब अगर हम लोग इसको थोड़ा और थियोरेटिकली समझना शुरू करें, लाइक द थिंग्स, द टर्म्स दैट आई एम यूजिंग, ये सबनेट एंड ऑल, तो क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हैं दैट वी हैव टू कीप इन अवर माइंड. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबनेट का मतलब ऐसा कुछ है हम लोगों के लिए कि इट्स लाइक यू हैव अ लार्ज नेटवर्क, यू वांट टू डिवाइड इट इनटू द सब नेटवर्क्स. ओके, आपके पास एक लार्ज नेटवर्क है जिसको आप सब नेटवर्क्स में तोड़ना चाहते हो, जैसा कि हम रियल लाइफ में करते हैं हमेशा. व्हाट वी डू इन रियल लाइफ इज कि आप अगर सोचे कि किसी भी कंपनी में आप जॉब करने जाते हो, हर कंपनी में डिपार्टमेंट होते हैं. ओके, आईटी टीम अलग होती है, मैनेजर्स की टीम अलग होती है, एचआर टीम अलग है, मार्केटिंग टीम अलग है. सो देयर इज अ डिफरेंट टीम फॉर ईच एंड एवरी ऑपरेशन. सो इट्स लाइक अ लार्ज कंपनी इज बीइंग ब्रोकन डाउन इनटू द सब टीम. कुछ इस तरीके से हम लोगों का वो डिवीजन क्रिएट हो गया. तो अब अगर एक टीम किसी चीज पर काम करती है, एक डेटा पे काम करती है, तो उसका दूसरी टीम से कोई लेना देना फिलहाल नहीं है. ओके, कि भाई एचआर का अपना काम है, जो आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, जो आईटी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उसका अपना काम है. सो वी आर क्रिएटिंग दिस सब नेटवर्क कि हम आसानी से किसी भी डिपार्टमेंट को, किसी भी सब नेटवर्क को एक्सेस कर सके. आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग, क्योंकि सब नेटवर्क एक्सेस करना आसान है, एक स्मॉल नेटवर्क को एक्सेस करना आसान है, इफ आई कंपेयर इट विद अ लार्ज नेटवर्क. ओके, सो दैट्स व्हाट अ सबनेट इज. आई होप इट इज क्लियर. नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस सब नेटवर्क, तो हमने ये तो समझ लिया कि ये जाकर सबनेट क्रिएट करता है और उस सबनेट में आप कुछ राउट प्रोवाइड करते हो जिससे कि आप एक कम्युनिकेशन अलाउ कर सकते हो. लेट मी जस्ट शो दिस वन मोर थिंग हियर. यहाँ पर हम ऐसा भी कर सकते हैं, देयर इज अ टर्म नोन एज इंटर कम्युनिकेशन. इंटर कम्युनिकेशन क्या होता है कि आई एम गोइंग टू प्रोवाइड अ वे, मैं यहां पर इन दोनों को बात करने के लिए एक अलाउ कर देता हूं कि ये लो भाई, यू कैन टॉक टू ईच अदर. Okay, so I hope you are also getting this thing. So you are creating a route, so you are basically allowing to communicate between 2 subnet. 2 subnet अब एक आपस में बात कर सकते हैं. Okay, now I hope it is clear that what exactly the subnets are, VPC, that is a virtual private cloud is. Okay, अब इसके बाद हम लोग इसको देखना शुरू करते हैं AWS पे जाकर, that how exactly it is going to work at that. मतलब वहां पर जाकर हम लोगों ने क्या क्या इसको कैसे हैंडल करना है वीपीसी को. ओके, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी टिल हियर? कुछ पूछना है भी किसी को? सिंपल है यहां तक, कोई मुश्किल चीज तो नहीं है भाई अभी. मतलब क्योंकि ना देखो टर्म्स बहुत बड़े हैं. वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, मतलब आप ना नाम सुनोगे तो माइट भी आपको लगेगा कि यार ये क्या है, सबनेट क्या है, सबनेट भाई किस तरह की बातें हो रही हैं. लेकिन इसको ब्रेक डाउन कर लो छोटी छोटी चीजों में. So please give me a confirmation everyone. Are you all clear till here? सब लोगों को समझ आ गया है यहाँ तक? Yes, sir. चलिए ठीक है, आगे बढ़े. So now let's go to this console and from here we just want to understand the VPC. यहाँ पर हम अपना VPC देखना शुरू करते हैं. So I already searched for it, या आप सर्च कर सकते हो VPC. Isolated Cloud Resources बोलते हैं जिसको हम.
यहाँ से जाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम चेक करके आते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो आपका AWS है वो आपको दो तरह के यहाँ पर ऑलरेडी ये प्रोवाइड भी करके आने वाला है। जो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है, इट इज गोइंग टू प्रोवाइड यू टू डिफरेंट काइंड ऑफ देम, ठीक है, जिसमें से एक होता है हम लोगों का बाय डिफॉल्ट जो मिलता ही है, और एक होगा जो हम लोग क्रिएट करके आने वाले हैं। ओके, सो बेसिकली व्हाट आई एम रिपीटिंग दिस थिंग अगेन कि AWS आपको दो तरह के यहाँ पर कुछ प्रोवाइड करने वाला है। एक होता है डिफॉल्ट Amazon VPC, एक होता है कस्टम Amazon VPC, दो होते हैं। अब उसके अंदर चलते हैं पहले VPCs के अंदर। लेट्स गो इनसाइड। यहाँ पर आपको ये डिफॉल्ट मिलता है, दिस इज द डिफॉल्ट VPC दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय Amazon, दैट इज प्रोवाइडेड बाय AWS। ओके, अब अगर आप लेफ्ट साइड पे ध्यान दोगे यू विल सी सबनेट। लेट्स क्लिक ऑन सबनेट। सबनेट पे चलते हैं। You can see there are 3 subnet. Now, if you pay attention to this part, जब हम लोगों ने EC2 instance create किया था, when we was creating EC2 instance, then you might remember that it was asking subnet. So I don't know you guys remember that thing or not, but if I show you again, you'll be able to recall it. कि जब भी आप कोई एक नया EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हो तो ये आपसे सबनेट पूछता है। ये उन्हीं 3 सबनेट ऑप्शंस को आपके सामने रखेगा। लेट मी शो। नाउ यू कैन सी देयर इज अ सबनेट हियर। This subnet by default, no preference, default subnet in any availability zone. Let's click here. You can see 3 different options are being provided to you here. तो जब आप EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हो तो जो AWS बाय डिफॉल्ट 3 सबनेट क्रिएट करके बैठा है वो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखा देता है। आई होप नाउ इट इज रिलेटेबल। अब आप इसको रिलेट कर सकते हो कि किस तरीके से हम लोग को यहाँ पर ये सबनेट मिलते हैं। वी कैन क्रिएट अवर ओन सबनेट एज वेल। हम यहाँ पर जाकर अपने और भी सबनेट क्रिएट कर सकते हैं। Now this is subnet. I hope subnet is clear. There is one more thing. You can see there is a route table. Now what this route table is, जिसके अंदर अभी क्या क्या चीजें हैं, so you can understand this table. It is going to contain the rules. इसके अंदर क्या होते हैं, हमारे rules होते हैं जो बताते हैं कि ये जो हमारा ट्रैफिक है, जो राउटिंग ट्रैफिक है, कि वो सबनेट के अंदर कैसे आ रहा है या कैसे जा रहा है। So it contains the rule for routing the traffic within and outside the subnet. Okay, so I hope it is easily understandable कि route table क्या होती है। Okay, and then there is one more thing known as internet gateway. Internet gateway भी काफी important होता है हम लोगों के लिए। They basically allow your instance to connect to the internet. यही वो internet gateways है जो आपके instance को internet से connect करने की permissions देते हैं आपको। So obviously all these things matters a lot. Okay. So I hope it is clear कि हम लोगों के पास सबसे पहले एक VPC है, वहां पर हम लोगों को दो तरह के मिलते हैं। Either we are provided with the default one or we can customize our own. तो इसका एक आर्किटेक्चर होता है। Let me just quickly show it to you. Default Amazon VPC, इसका एक कंप्लीट एक डायग्राम होता है, एक इमेज होती है। Just look at this. It is the internal architecture of it. ये उसकी कंप्लीट आपको लेयर वाइज बताता है कि देखो सबसे ऊपर AWS layer, then inside that there is a VPC, and then you have created the instances that are actually connected using the subnet. I hope we are clear till here, and we know that what is VPC, and now we know that what are subnets and how Amazon handles them. Any question? Sir, do we need this much security? हमें नहीं चाहिए। Why do we need this much security? क्योंकि अच्छा एक बात बताओ, आप लोग खुद सोच के बताना भाई कि आज की डेट में जैसे गूगल है या कोई भी बड़े से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन गूगल खुद है, क्या वो कभी हैक नहीं हुआ? गूगल भी तो हैक हुआ है ना। आपको पता है गूगल एक बार 10 मिनट के लिए हैक हुआ था, किसी रशिया के किसी बंदे ने हैक किया था। तो एक कॉमन सी बात है कि इतनी ज्यादा अगर सिक्योरिटी है तो क्यों है? ऑब्वियसली द रीजन इज कि पायरेसी कम होनी चाहिए,
या जो चोर है, देखो जहां पे खजाना है भाई वहां पे चोर भी है, ऐसा होगा कि नहीं होगा? आप एक जगह पर अपना खजाना क्या है आज की डेट में? डेटा। डेटा इज द न्यू ऑयल, आपने सुना है ये सच स्टेटमेंट? डेटा क्या है आज की डेट का नया एक ऑयल है, ऐसा बोला जाता है। क्यों बोला जाता है डेटा इज द न्यू ऑयल? इसलिए कहा जाता है कि जो आज की डेट में डेटा की कीमत है, जो डेटा का प्राइस है, वो ऑयल के बराबर है, ऑयल से ज्यादा है। ठीक है जी। तो समझ के चलो कि आपके डेटा सिक्योर नहीं है क्या? आपका इतना इंपॉर्टेंट डेटा होता है भाई। अच्छा, अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ था व्हाट्सएप के साथ, एक सिक्योरिटी का इशू, कि व्हाट्सएप ने आपसे परमिशन मांगी थी कि वो आपकी चैट पीछे देख सकता है ना उधर लेकिन सब लोगों ने मना कर दिया था ना। क्यों किया था? नहीं करते, सोचो। गेटिंग वो पॉइंट है, सिक्योरिटी तो चाहिए। अच्छा चलो और एग्जांपल लेते हैं। आप में से अगर कभी किसी ने नेटफ्लिक्स अमेजोन प्राइम यूज किया, ऑब्वियसली करते होगे आप लोग, तो ऐसा देखना कि आप सपोज मैं यहाँ नेटफ्लिक्स चला देता हूँ या फिर मैं यहाँ पर अमेजोन प्राइम चला देता हूँ और मैं गो टू मीटिंग पे अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं यहाँ पर आकर, तो क्या आप वो मूवी देख नहीं पाओगे जो मूवी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ? बताओ। Yes, sir, we can see. नहीं, यू कैन नॉट सी आप नहीं देख पाओगे, समझ रहे हो? यही तो सिक्योरिटी है। गेटिंग माय पॉइंट? समझ आ रही है बात भी आप लोगों को कि मैं अगर अपनी स्क्रीन पर, स्क्रीन आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, एक ब्लैक कलर की ब्लैंक स्क्रीन नजर आनी शुरू हो जाएगी आप लोगों को। मैं यहाँ पर अगर मूवी प्ले कर दूं नेटफ्लिक्स पे, आपको दिखाई नहीं देगा वो। सोचो, यही तो सिक्योरिटी है। करेंगे तब भी नहीं होगा। हाँ जी, अगर सर हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी नहीं करने देगा वो आपको। मैंने एग्जैक्टली स्क्रीन रिकॉर्डिंग ट्राई नहीं किया, बट जहां तक मुझे मतलब मैंने देखा है, सुना है कि हाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी नहीं करने देते। अब भी देखो, मेरे को नहीं पता डिस्कॉर्ड एंड ऑल के बारे में कि आप मीट पे नहीं कर सकते, डिस्कॉर्ड पे कर सकते हो, ठीक है। बट दिस इज द टाइप ऑफ थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट कि सिक्योरिटीज कैसे मेंटेन। ये ना देखो, एक सिंपल सी चीज है कि डेटा इतना ज्यादा आज की डेट में हम लोगों का यूजफुल है, हम लोगों को चाहिए मेंटेन करना है, तो व्हाई शुड हम क्यों टेक केयर करें? अमेजोन खुद टेक केयर कर रहा है, वो कह रहे हैं मैं टेक केयर करता हूँ ना, आपको टेंशन क्यों लेनी है? दिस इज द ओनली पॉइंट। ये सिर्फ इतना पॉइंट है जो हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, तो देर इज वन मोर थिंग नोन एज वीपीसी पियरिंग। इसका सिर्फ ओवरव्यू लेना है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ ऐसी बात नहीं करनी हमने। वीपीसी पियरिंग का मतलब होता है दैट यू वांट कि वो जो सबनेट हमने बनाए हैं ना, जो हमारे सबनेट्स हैं, उनको मुझे अगर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कराना है। ओके, सो पीयर का मतलब समझते हैं आप? पीयर टू पीयर कनेक्शन। सो इफ यू हैव हर्ड अबाउट दिस टर्म, सुना है भाई आप लोगों ने? P2P होता है। सॉरी, यस सर। पेयरिंग क्या होता है? 1 to 1 एक रिलेशन होती है, ठीक है। तो लेट्स से आपके पास एक सबनेट है, दिस इज अ सबनेट एंड दिस इज अनदर सबनेट, दिस इज अनदर सबनेट। तो आपके पास अलग अलग आईपीज पे अलग अलग वीपीसी सबनेट्स हैं। सो लेट्स से दिस इज वीपीसी ए, दिस इज वीपीसी बी, दिस इज वीपीसी सी। सो वी हैव समथिंग लाइक दिस। तो ये हम लोगों की पेयरिंग क्या होती है कि वी आर एबल टू कम्युनिकेट, कि हम एक सबनेट का दूसरे सबनेट से क्या कर रहे हैं, एक तरीके से एक रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं। सो अ वीपीसी कैन हैव मल्टीपल पेयरिंग कनेक्शन टू अदर वीपीसीज। ओके, तो मतलब वीपीसी ए बी के साथ कनेक्ट कर सकता है, ए सी के साथ भी कनेक्ट कर रहा है, लेकिन बी सी से बात नहीं कर सकता। डायरेक्ट कनेक्शन होगा तो ही हो सकता है, अभी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है ना, तो वीपीसी बी एंड सी कैन नॉट कम्युनिकेट until unless we pair them directly. Okay, so ये एक सिंपल हमारी वीपीसी पेयरिंग होती है। Okay, so I hope it is clear. Now let's talk about the next thing. Let me delete it from here. So any questions clear till here? Client and server are same. Client and server are same मतलब आप कौन से client server की बात कर रहे हो? Which client server you are talking about? पीयर टू पीयर नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि क्लाइंट सर्वर सेम है आपके यहाँ पर
तो अलग अलग EC2 इंस्टेंसेस है ना मेरे, दीज आर द डिफरेंट इंस्टेंसेस दैट आई हैव क्रिएटेड। आपने एक इंस्टेंस क्रिएट किया किसी और रीजन में, किसी VPC के अंडर में, फिर आपने दूसरा इंस्टेंस क्रिएट किया किसी और VPC के अंडर में। सो नाउ यू हैव डिफरेंट टू थिंग्स। ओके, तो आप अलग अलग इंस्टेंसेस क्रिएट कर रहे हो, अलग अलग रीजंस के अंडर में कर सकते हो, ये भी आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी है। ओके, सो आई होप वी आर क्लियर टिल हियर नाउ। ओके ग्रेट, तो आई एक्सपेक्ट सब लोगों को अच्छे से समझ आ रहा है। मतलब एक होता है कि भाई हाँ जी बस समझ आ रहा है काम चलो, एक होता है अच्छे से समझ आ रहा है। तो इसलिए मुझे बताओ, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड क्लियरली, और लाइक सिर्फ सिंपल सिंपल समझ आ रहा है? क्योंकि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका बैकग्राउंड नहीं था, तो स्टिल दे आर जस्ट मैनेजिंग टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। तो इसलिए मुझे आप लोग क्लियरली बताओ कि हाँ जी कितना अच्छे से समझ आ रहा है या ओके ओके आ रहा है, सो दैट आई विल ट्राई टू रिड्यूस दी लाइक डिफिकल्टी लेवल, या मैं पढ़ाने का कोई और पेस आपको चाहिए, जस्ट टेल मी दैट। सर सही है, समझ में आ रहा है। ठीक है ठीक है, तो प्रॉब्लम पता है क्या है यहाँ पर? देखो प्रॉब्लम है कि कुछ AWS थियोरेटिकल है पूरा, बट आई ट्राई टू मेक थिंग्स प्रैक्टिकल। मैं चाहता नहीं हूँ कि थ्योरी की तरह चले। कभी भी अगर आपको AWS पढ़ना होगा ना, आप इंटरनेट पे जाना, इसके ब्लॉग्स मिलेंगे, थ्योरी मिलेगी आपको, सिर्फ थ्योरी। अब थ्योरी पढ़ के आप लोगों को भी पता है कि भाई कितना बोर हो सकते हो आप, ठीक है। और थ्योरी अगर आप कॉन्टिन्यूसली पढ़ते भी रहते हैं तो वो 2 दिन बाद आप ऑब्वियसली भूलने वाले हो। तो इसलिए हर चीज को आपको रिलेट करते हुए चलना है किसी ना किसी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। ओके, तो आई थिंक वी कैन मूव नाउ। तो अभी देखो हर चीज का बहुत बहुत ज्यादा डिटेल नहीं देख रहे हैं हम, इतना देख ले रहे हैं कि सो दैट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस पर्टिकुलर थिंग इज। इतना हमें पता चल जाए कि अच्छा ये चीज क्या होती है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भाई फाइनली वी विल बी एबल टू टॉक अबाउट द स्टोरेज नाउ। अब हम स्टोरेज के बारे में बात कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो इन टर्म ऑफ स्टोरेज, अगर हम स्टोरेज की बात करना शुरू करें ऑन क्लाउड स्पेसिफिकली, तो क्लाउड से पहले जो स्टोरेज होती थी वो कैसे हुआ करती थी कि लाइक इफ यू हैव सम सॉर्ट ऑफ डेटा, यू वांट टू मेंटेन द बैकअप ऑफ इट। आपको किसी भी डेटा का अगर बैकअप चाहिए होता था तो हम लोग क्या किया करते थे, वी यूज्ड टू परचेज द हार्ड डिस्क। हम हार्ड डिस्क खरीदते हैं उसके लिए, पेन ड्राइव खरीदते थे, अभी हार्ड डिस्क खरीदते हैं, 1 TB 2 TB की हार्ड डिस्क आती है। अब प्रॉब्लम ये है कि हार्ड डिस्क, एक हार्ड डिस्क में आपने अपना डेटा रखा, आपको लगता है कि दिस इज काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट डेटा आई हैव, मुझे उस डेटा की कॉपी बनानी है तो मुझे एक और हार्ड डिस्क परचेज करनी पड़ेगी, क्योंकि सेम हार्ड डिस्क तो क्रैश हो सकती है ना, और उसी हार्ड डिस्क के अंदर अगर आपने कॉपी बनाकर रखी तो कॉपी भी डिलीट हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई व्हाट वी नीड इज, वी नीड 2-3 डिफरेंट काइंड ऑफ हार्ड डिस्क। जितनी ज्यादा हार्ड डिस्क लोगे उतना कॉस्ट भी तो आने वाली है। तो इफ आई से कि एक हार्ड डिस्क अगर आपको 5,000 की मिलती है जिसमें आपने डेटा कॉपी किया, वो आपको दूसरा बैकअप रखना है, वो अगेन 5,000, तो 10,000 रुपए में आपने अपना डेटा कॉपी करके रखा हुआ है। जस्ट इमेजिन दिस थिंग। सो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि जब हम स्टोरेज की बात कर रहे हैं क्लाउड पे, तो इसीलिए आपको अलग अलग तरह के ऑप्शंस मिलते हैं आज की डेट में। जैसे कि गूगल क्लाउड इज अ ऑप्शन, आप गूगल क्लाउड पे जाकर डेटा स्टोर कर, गूगल ड्राइव पे स्टोर करते हो। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव इज देयर, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव पे डेटा स्टोर करते हो। या फिर एक मीडिया फायर आता है हम लोगों के पास। सो वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज, डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाउड प्लेटफॉर्म्स दैट आर प्रोवाइडिंग यू सम फ्री स्टोरेज। कुछ ना कुछ फ्री स्टोरेज जरूर मिलता है, लेकिन जो AWS देता है ना, दैट इज कंप्लीटली ऑन अ डिफरेंट लेवल। वो लेवल ही अलग है, वो चीज ही कुछ अलग प्रोवाइड करता है हमेशा। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि वो ऐसा क्या हम लोगों को प्रोवाइड करता है। तो क्लाउड स्टोरेज हम लोग यूज क्यों करते हैं? टू मेंटेन दी बैकअप्स, ताकि मैं कहीं से भी उसको इजीली एक्सेस कर सकूं। सबसे पहली चीज तो यही है हम लोगों के लिए। तो टू मेंटेन बैकअप्स, ये सबसे पहली चीज होती है जो हर कोई प्रोवाइड करता ही है। सो आई एम नॉट सिंपली टॉकिंग अबाउट ओनली दी वन सर्विस, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दी कॉमन क्लाउड प्लेटफॉर्म्स जो भी आपको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन AWS का आता है आपके पास S3। तो S3 बेसिकली स्टैंड्स फॉर सिंपल
स्टोरेज सर्विस. नाउ व्हाट डज दिस मीन? इसका क्या मतलब होता है? इट इज डिजाइन फॉर द लार्ज कैपेसिटी, मतलब ज्यादा से ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हो, लो कॉस्ट, कम कॉस्ट में ज्यादा डेटा, एंड अक्रॉस द मल्टीपल जियोग्राफिकल लोकेशंस या रीजन्स. आप इसको मल्टीपल अपने हिसाब से, यू कैन इवन पिक द लोकेशन, जियोग्राफिकल लोकेशन आप पिक कर सकते हो कि मुझे किस जियोग्राफिकल लोकेशन पे स्टोर कराना है इसको. ओके, तो यहां पर हम लोग जब बात करते हैं तो ये आपको क्लाइंट प्लस सर्वर दोनों साइड एनक्रिप्शन प्रोवाइड करता है. ओके, तो इट इज हाईली स्केलेबल, कि जितना एक्वायर करोगे उसके अकॉर्डिंग ये आपको चार्ज करता है. ओके, इफ आई गिव यू वन एग्जांपल ऑफ गूगल ड्राइव, अगर गूगल ड्राइव का एग्जांपल है तो गूगल ड्राइव क्या करता है कि आप सपोज बाय डिफॉल्ट वो आपको 15 GB देता है फ्री. अब आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो गूगल ड्राइव आपको कहता है परचेज करो आप स्पेस. अब वो सीधा आपको 100 GB एक्स्ट्रा स्पेस दे देता है इन 130 रुपीज. 130 रुपए में आपको 100 GB मिलता है, लेकिन मुझे 100 GB की जरूरत नहीं है. I just want 20 GB, I just want 30 GB, 50 GB. वो आपको 100 GB एक्स्ट्रा स्पेस देता है 130 रुपए में. तो अब यही तो प्रॉब्लम है ना. ये क्या बोल रहा है? S3 इज हाईली स्केलेबल, मतलब मैं आपको जितना आप स्टोरेज यूज करोगे उतना ही चार्ज करूंगा, उससे ज्यादा आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज. दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग हियर. नाउ आफ्टर दैट देयर आर 3 इंपॉर्टेंट क्लासेस ऑफ 3 स्टोरेज क्लासेस ऑफ S3. S3 की 3 इंपॉर्टेंट क्लासेस होती है हम लोगों के पास. तो क्या क्या क्लासेस है? वैसे तो मतलब इसके बारे में भी हमें काफी डिटेल में भी बात करनी है, बट राइट नाउ जस्ट हैव अ बेसिक ओवरव्यू. एक होता है हम लोगों के पास S3 स्टैंडर्ड फॉर फ्रीक्वेंट एक्सेस. फर्स्ट थिंग इज S3 स्टैंडर्ड फॉर फ्रीक्वेंट डेटा एक्सेस. The second is S3 standard for infrequent data standard. S3 standard for was frequent, this was infrequent. And the third one is S3 Amazon Glacier. Now what these things are? ये सब क्या है? So basically when we are talking about these things, when we are talking about these terms and all, तो ये क्या करता है? कहता है कि देखो आपको जब स्टोरेज चाहिए, अब स्टोरेज भी इसने 3 तरह की दी है. कहता है हो सकता है आपका कोई ऐसा डेटा है जो आपको बहुत ही फ्रीक्वेंटली चाहिए, कि जैसे मैंने स्टोर किया मैं उसको डेली एक्सेस कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू एक्सेस इट ऑन दी डेली बेसिस, कि मैं इसको डेली बेसिस पर एक्सेस करने वाला हूँ. सो दैट्स अ फ्रीक्वेंट डेटा एक्सेस. तो इट्स काइंड ऑफ लाइक सुटेबल फॉर योर परफॉर्मेंस सेंसिटिव यूज केसेस, जहाँ पे आपको भाई बहुत हाईली यूज केसेस है, मेरे बहुत हाईली सेंसिटिव है चीज है कि मुझे फ्रीक्वेंटली एक्सेस करना है, कि फटाफट डेटा जाए, फटाफट डेटा आ जाए, काइंड ऑफ दैट. सेकेंड वन इज इनफ्रीक्वेंट. इनफ्रीक्वेंट का मतलब क्या हुआ कि बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं चाहिए, कि थोड़ा टाइम मैं मतलब डेटा डाल दिया है, जैसे हम गूगल ड्राइव पे करते हैं, डेटा डालते हैं कुछ टाइम बाद एक्सेस कर रहे होते हैं. दैट्स काइंड ऑफ इनफ्रीक्वेंट, कि मैं डेली एक्सेस नहीं कर रहा हूँ, मैं महीने 2 महीने बाद भी डेटा एक्सेस करना चाहूं तो आई कैन एक्सेस दैट. सेकेंड थिंग इज दैट. थर्ड इज Amazon Glacier. Amazon Glacier वो उस तरह का डेटा है कि जहां पर आपको एक कंप्लीट एक बैकअप की तरह रखना है, कि अनटच्ड डेटा है, कि मैं पता नहीं इसको कब यूज करने वाला हूं एग्जैक्टली. ओके, सो इट इज सेइंग कि अब आपके पास 3 तरह की स्टोरेज क्लासेस होंगी यहाँ पर, और जो स्टोरेज क्लासेस है इसी की वजह से हम लोग की कॉस्ट इफेक्टिवनेस आती है. If you want to relate this, just relate it with the Netflix kind of example. जब आप Netflix पे सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो तो आपको 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन मिलते हैं, कि आपको एक बेसिक मिलता है जिसके पैसे सबसे कम होते हैं, उसके बाद आपको स्टैंडर्ड मिलता है, उसकी जो अमाउंट होती है वो कुछ और होती है, थोड़ी ज्यादा होती है, उसमें फीचर भी ज्यादा होते हैं. फिर एक प्रीमियम होता है, प्रीमियम में अल्ट्रा HD मिलता है, ये वो ऐसे फीचर मिलते हैं. लेकिन सबसे ज्यादा खरीदते कौन सा लोग हैं? या तो बेसिक या स्टैंडर्ड. प्रीमियम बहुत कम मेरे ख्याल से जाता है, जनरली लोगों को बेसिक या स्टैंडर्ड में सब कुछ मिल ही जाता है. तो ये भी बिल्कुल ऐसा ही है कि इसने आपको 3 ऑप्शन प्रोवाइड किए हैं. कहता है कि मेरे पास एक बेसिक है, मेरे पास एक स्टैंडर्ड है, मेरे पास एक प्रीमियम है. तो अब अगर हम यहाँ पर रिलेट करना शुरू करते हैं तो इसकी जो कॉस्टिंग होगी वो भी बिल्कुल ऐसे ही है. तो S3 का जो स्टैंडर्ड है फ्रीक्वेंट एक्सेस है, कि आप बहुत फ्रीक्वेंटली डेटा को एक्सेस करने वाले हो, तो उसके जो चार्जेस होंगे वो भी उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलने वाले हैं. Okay, now let's relate these things practically. Practically समझने के लिए हम लोग चलते हैं सर्विसेज पे,
और यहां से हम लोग सर्च कर लेते हैं, लेट्स से S3. ओके, टू मेजर इंपॉर्टेंट थिंग्स, जब भी हम लोगों को स्टोरेज करना है डेटा का, यहाँ पर दो टर्म्स होती हैं, एक होती है बकेट, एक होती है ऑब्जेक्ट. देयर इज अ टर्म नोन एज buckets and then there is a term known as objects. जितना भी Amazon डेटा स्टोर करता है, AWS डेटा स्टोर करता है, वो buckets की फॉर्म में करता है. buckets is like a folder. ओके, bucket कुछ नहीं है, एक ड्राइव की तरह. फोल्डर के भी ऊपर चले जाओ तो इट्स लाइक अ ड्राइव. इन दैट यू जस्ट हैव टू क्रिएट योर bucket फर्स्ट. सबसे पहला काम क्या करना होता है हम लोगों को? वी हैव टू क्रिएट दी bucket. So while creating a bucket, it will ask you a name. अब यहाँ पर आते एक ऐसी ना प्रॉब्लम है छोटी सी. इट्स लाइक कि आप बकेट का नेम रखने जाओगे, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, लेकिन ये कहता है देखो बकेट का जो नेम होना चाहिए यूनिक होना चाहिए. यूनिक मतलब क्या? यूनिक मतलब आपने लिख दिया बकेट 1. ट्राई करते हैं कि बकेट 1 एक्सेप्ट करता है ये. ठीक है, बकेट 1 इसने एक्सेप्ट किया, लेकिन इसके कुछ रूल्स होते हैं. So it is saying see rules for bucket naming. कहता है आपकी जो बकेट का नाम है ना वो हमेशा यूनिक होना चाहिए. Okay, so if I try to create a bucket, let's see. देखो इसने क्रिएट ही नहीं किया. It is saying bucket with same name already exists. लेकिन क्या हमने अभी तक कोई बकेट एग्जिस्ट क्रिएट की है? No, that is my first bucket. ये तो मैं पहली बकेट क्रिएट कर रहा हूं. तो फिर ये कौन से नेम एग्जिस्ट की बात कर रहा है? ये बिल्कुल ऐसा है जैसे ना यूजर नेम होते हैं इंस्टाग्राम पे कि भाई सबका यूनिक होना चाहिए. ये बिल्कुल ऐसा ही कुछ है. कहता है इसमें अंडरस्कोर नहीं आने चाहिए, बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशन है. कैपिटल नहीं आता, इसमें स्मॉल केस ही आता है. तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं कि अगर आप बकेट का नाम रखना चाहते हो तो कुछ ऐसा रख सकते हो, और वो यूनिक होना चाहिए. यूनिक मतलब इन द सेंस कि हर बकेट का नाम अलग रखना पड़ेगा आपको. सपोज आपने रखा बकेट 001, ये भी एग्जिस्ट करता है. देखो मतलब सोचो बकेट का मैं क्या नाम रखूं, ये भी एग्जिस्ट करता है. आप समझ रहे हैं? इट्स लाइक अ यूजर नेम यू आर पिकिंग, कि मुझे हर बार जब भी कोई बकेट क्रिएट करनी है उसका यूनिक नेम सोचना है. तो इसीलिए बेटर है कि मैं इसको ऐसे सोचकर चलूं, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप कोई बकेट बना रहे हो. सपोज आई एम विद BMPL डॉट, आई जस्ट वांट टू मेक इट अ bucket -1. तो BMPL.bucket-1 ऐसी कोई बकेट एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि BMPL ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हूं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का मैंने नाम लिखा .bucket1, एंड नाउ आई विल बी एबल टू क्रिएट दी बकेट. सो बकेट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली. इस तरीके से हम लोगों की बकेट क्रिएट हो जाती है. अभी समझ लो सिर्फ एक डायरेक्टरी की तरह आपने क्रिएट किया. एक डायरेक्टरी, एक फोल्डर बन गया. अभी उसके अंदर हम लोगों को डेटा अपलोड करना है. तो ऐसा नहीं है कि गूगल ड्राइव की तरह की डायरेक्टली जाकर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया. ऐसा नहीं करते यहाँ पर. फर्स्ट यू क्रिएट अ बकेट. बकेट क्रिएट करने के बाद लेट्स गो इनसाइड द बकेट. अब यहां पर आते हैं ऑब्जेक्ट. द सेकंड टर्म इज ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? आपकी फाइल्स, आपकी इमेजेस हो सकती हैं, ऑडियो, वीडियो, व्हाटएवर द डेटा यू वांट टू स्टोर इन योर बकेट्स. ओके, तो अब अगर हम लोगों को बकेट्स में डेटा स्टोर करके आना है तो लेट्स गो इनसाइड. अब फर्स्ट उसके अंदर जाकर आप डायरेक्टली या तो अपलोड कर सकते हो, फोल्डर क्रिएट कर सकते हो. सो लेट अस से आई वांट टू क्रिएट अ फोल्डर नोन एज इमेजेस. ओके, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट इट. तो इट हैज क्रिएटेड सक्सेसफुली वन फोल्डर नोन एज इमेजेस. इसके अंदर चलते हैं. इमेजेस के अंदर आई वांट टू अपलोड अ फाइल. सो आई विल क्लिक ऑन अपलोड. अपलोड करना है तो अब यहाँ से ऐड फाइल, ऐड फोल्डर, व्हाटएवर यू वांट टू डू. सो लेट अस से आई वांट टू ऐड अ फाइल. मुझे कोई फाइल ऐड करनी है, किसी भी तरह की कोई इमेज. लेट्स गेट वन इमेज. सो सपोज दिस इज द काइंड ऑफ इमेज आई हैव, और ये जाकर हम लोग अपलोड करके आते हैं. दैट्स इट. नाउ यू कैन सी द इमेज हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली. हम लोग की ये इमेज सक्सेसफुली यहाँ पर अपलोड हो गई है. वी कैन क्लोज इट. Now there is an image. If I click on this image, that is being stored now here. And enable bucket versioning and all. ठीक है, bucket versioning अभी हमने नहीं देखा है. But I hope it is now clear that how to create the bucket and how to upload the files or the objects in your buckets. समझ आ गया भाई आप सब लोगों को? ये कोई क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट? Everyone, please give me a confirmation. Is it clear?
Yes, sir. Okay, तो next thing, let's talk about the चीज और आती है हम लोग की हम लोग की जो फाइल हम लोगों ने अपलोड की है, इसके लिए आपको कुछ परमिशंस हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो सेट करके आनी होती है. ओके, नाउ व्हाट आर दोज प्रॉपर्टीज, व्हाट आर दोज परमिशंस, लेट्स सी देम वन बाय वन. तो पहले प्रॉपर्टीज में चलते हैं. प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है एंड एट द बॉटम you will see there is an option of static website hosting which is by default disabled. सबसे पहला काम क्या करना है आपको, you have to go inside this properties. इसके अंदर आप देखोगे there is a written static website hosting, it is disabled, so make it enable. इसको enable करके आते हैं and after doing it enable you have to specify the name of your file which is obviously index.html. That's it. And now save changes. The changes has been saved successfully. तो अभी हम लोगों की जो वेबसाइट का लाइव करने के लिए अनेबल करना था, स्टैटिक वेब होस्टिंग को अनेबल करना था, वो हम लोगों ने कर लिया. दिस वाज द फर्स्ट थिंग, दैट वाज अ मैंडेटरी थिंग एक्चुअली. तो इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, बिल्कुल बॉटम में आते हैं, यू विल गेट अ न्यू यूआरएल. अब एक नया यूआरएल आता है, लेट्स क्लिक इट, देखते हैं ओपन होता है. अगेन इट इज नॉट अलाउइंग, इसने फिर से मना कर दिया. ये मना इसलिए कर रहा है क्योंकि परमिशन चाहिए, इट नीड्स अ परमिशन. So you have to go this time inside the permissions. Permissions के अंदर चलते हैं और परमिशन के अंदर ये कहता है ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस. बाय डिफॉल्ट इसने क्या किया हुआ है, जितने भी पब्लिक एक्सेस है सबको ब्लॉक किया हुआ है. कोई भी आपके बकेट को टच नहीं कर सकता, सबका एक्सेस ब्लॉक्ड है. तो इसको हमें करना है एडिट एंड वी हैव टू अनचेक दिस थिंग. तो हमें ब्लॉक नहीं करना इस पर्टिकुलर बकेट के लिए एंड देन डू सेव चेंजेस एंड राइट कंफर्म हियर and then finally click on confirm. That's it. Let's get back to the properties. Properties में जाते हैं और there is one more thing I think we have to do. Let's try it कि अभी ये मुझे चलाने देगा कि नहीं. Still there might be one problem. Yeah, definitely. एक छोटी सी last problem और है. What that problem is? Let's get back here. Objects में जाना है वापस हम लोगों को. Inside the object you have to basically give a permission. आपको परमिशन कैसे देकर आनी है, एक और परमिशन है बेसिकली जो देकर आनी होती है कि यहां जाकर इसको टिक करते हैं. ओके, सिंपली टिक दिस, क्लिक ऑन एक्शंस एंड स्क्रॉल डाउन, यू विल सी मेक पब्लिक. आपको नजर आएगा कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, मेक पब्लिक, क्लिक हियर एंड इट विल आस्क यू टू मेक पब्लिक. आर यू श्योर? यस, आई एम श्योर दैट आई वांट टू मेक इट पब्लिक. देन क्लोज इट. दैट्स इट. नाउ लेट्स डू रिफ्रेश. योर वेबसाइट इज लाइव successfully. I hope it is clear that how you can live your website, how to make a static web hosting, कैसे perform करना है हम लोगों को, अपनी वेबसाइट को कैसे लाइव करना है. But this is only for the static web pages. It's not for the dynamic one. तो आपकी कोई HTML है, CSS है, सब कुछ है, just keep it here and you can make them live. If I share this URL with all of you, अगर मैं ये URL आपके साथ शेयर करूं, you will be also able to look into this website. आप भी इसको ओपन कर पाओगे. Now I hope it is clear that how to make your website live using S3. सर, इससे ये भी पता चल सकता है कि कितने लोग हमारे वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं? वो पता चलता है लेकिन उसका तरीका अलग है. बताऊंगा इन सब चीजों के बारे में ना आपकी, कि आप मैनेज कैसे करते हो. क्योंकि ना वो होता है, आप जिस चीज आप पूछ रहे होते हैं डिप्लॉयमेंट के रिलेटेड. जब आप डिप्लॉयमेंट करते हो ना, तब उसमें वो सारी डिटेलिंग्स हमें दिखनी शुरू हो जाती हैं. अभी तो हमने क्या किया, अभी तो हमने सिंपल एक स्टैटिक पेज बनाकर लोड करा दिया है बस. ठीक है, ओके सर. हाँ जी, क्लियर. Everyone, please give me a confirmation. Is it clear? Yes, sir. तो नाउ आई कैन एक्सपेक्ट जिसको HTML आती है वो तैयार है अपनी वेबसाइट लाइव करने के लिए. भाई आज Yes, मेरे sir. हिसाब से सब लोग लाइव कर देंगे. ठीक है, लेकिन ध्यान रखना भाई पोस्टिंग वगैरह का भी, कि आप बहुत ज्यादा अपलोड कर दो तो ध्यान रहे. क्योंकि देखा ना, मेरे पास मेल आ चुकी थी इसकी कि मैं उससे एक्सीड कर चुका हूँ.
So if I search for AWS budget again, let me see the budget where it is now. Okay, now you can see I have exceeded my budgets. मैंने 50% सेट किया हुआ था और मेरा थ्रेशोल्ड अब ऊपर जा चुका है. ओके सर हम पे ही ना करें तो बेटा कार्ड ऐड करते हो तभी तो लॉगिन कर पाते हो. नहीं सर, ओटीपी डालेंगे तभी वो पेमेंट होगा ना, कि वो अपने आप काट लेगा. अपने आप काट लेगा. Amazon प्राइम पूछता है आपसे ओटीपी. अगर किसी ने सब्सक्रिप्शन लिया होता है भाई, तो क्या मंथली आपसे वो ओटीपी मांगता है, वो तो पैसे काट देता है, सीधा मैसेज आता है, सीधा अटैक कि ये पैसे कट गए. सेम यहाँ पर होता है. ठीक है जी, तो आई होप काफ़ी सारी बातें आज हम लोगों ने सीख ली है. कुछ थ्योरेटिकल भी थी, कुछ प्रैक्टिकल भी है. ऐसे ही कल भी चलेगा. 2 दिन और हमें अभी अच्छी अच्छी चीज़ें और सीखनी है. तो देखो अब हमने ना क्या क्या सीख लिया, एक बार इसको ऐसे समराइज करते हैं, है ना. हम लोग को बेसिक क्लाउड कंप्यूटिंग पता है क्या होती है, ठीक है. हम लोग को बेसिक AWS पता है क्या होता है, ठीक है. ऐसे मैं 1 बाय 1 आपको बताता जाऊँ. फिर अब इसके ऊपर सबसे पहले हम लोगों ने EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना सीखा. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आपको पता होना चाहिए EC2 इंस्टेंसेस क्या होते हैं, कैसे क्रिएट किए जाते हैं, ये हमें पता है. इसके बाद हमें स्टोरेज के बारे में पता है, स्टोरेज को कैसे एक्सेस किया जाता है, कैसे हैंडल किया जाता है. हमें यहाँ पर वेबसाइट होस्ट कैसे की जाती है ये हम सीख चुके हैं. दैट हाउ टू होस्ट अ स्टैटिक वेबसाइट टिल नाउ. VPC क्या होता है वो हमें पता है. मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे लगाते हैं ये बात आप सीख चुके हो. और इसके अलावा आप सीख चुके हो IAM यूजर कैसे क्रिएट किया जाता है. तो मैं अगर आपको बेसिक बताऊँ ना, आप कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ऑलरेडी आप सीख चुके हो यहाँ तक. अभी कुछ और चीज़ें हैं. प्राइसिंग मॉडल्स कैसे डिसाइड होते हैं, प्राइसिंग कैसे की जाती है, EC2 की कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, सिक्योरिटी के और क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं. बहुत सारी ऐसी बातें जो अभी हमें नेक्स्ट 2 डेज में कवर करनी है. तो वो भी अगेन हमारी कुछ चीज़ें थ्योरेटिकल हैं, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल है. एंड वी विल बी लर्निंग विद दिस पर्टिकुलर स्पीड. एंड जो भी हम सीख रहे हैं धीरे धीरे सबको इकट्ठा मर्ज करते चले जाएंगे. हाँ जी, तो अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट्स पूछना चाहता है कोई तो भी पूछ सकता है. तो देखो इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला हुआ है कि प्लीज मेक श्योर कि आप AWS पे अकाउंट क्रिएट कर चुके हो, क्योंकि अगर AWS पे आपका अकाउंट होगा तभी ये सब प्रैक्टिस कर पाओगे. ओके, तो प्लीज मेक श्योर टू डू दिस थिंग, क्योंकि देखो अगर अकाउंट नहीं है तो आप प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे. 2-3 दिन में सब वॉश आउट हो जाएगा ब्रेन से, सब बाहर चला जाएगा. तो इसीलिए आपको इनको रेगुलर प्रैक्टिस करना है. और कार्ड ऐड करने में क्या, पेरेंट्स का, बड़े भाई बहन किसी का भी आप कार्ड ऐड कर सकते हो. एनी AWS सर्विस, अरे बिल्कुल क्या बात कर रहे हो. AWS इज पॉपुलर फॉर द डिप्लॉयमेंट. AWS पे तो डिप्लॉयमेंट्स होती हैं अच्छी खासी, ठीक है ना. तो ऐसी सर्विसेज के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस किस सर्विस के थ्रू आप डिप्लॉयमेंट कर सकते हो. आफ्टर बजट इज एक्सीडेड विल इट स्टॉप ऑटोमेटिकली. देखो बजट एक्सीड हुआ है अब आपका, अगर तो उसके बाद ऑब्वियसली आपको नोटिफिकेशंस देगा, आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप जाकर कुछ और उसमें ऐड ऑन कर सकें ऑब्वियसली. And is the S3 the best way for uploading my React project? यार अभी करेंगे बात ना, डिप्लॉयमेंट के बारे में बताऊंगा ना, तब इस सॉल्यूशन पे आएंगे कि S3 इज बेस्ट और नॉट. ठीक है, क्योंकि अभी ना देखो डिप्लॉयमेंट करने के लिए हमें अभी स्टैटिक वेब होस्टिंग सीखी है हमने. ठीक है, अगर रिएक्ट है, आपको लगता है कि सिर्फ रिएक्ट का प्रोजेक्ट है तो नो प्रॉब्लम, यू कैन गो फॉर इट. ठीक है, बट स्टिल रिएक्ट के लिए भी ना आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं. जैसे मैं आपको बताता हूँ, AWS का आता है एम्पलीफायर, अभी ये सर्च करना. ऐसी ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हिडन है, तो बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं. तो मैं मतलब किस किस का नाम बताऊँ आपको. जैसे आप रिएक्ट वगैरह का करना चाहते हो उसके लिए बहुत पॉपुलर है ये, तो इसीलिए मैं नहीं बोल रहा कि आप S3 से करो या इससे करो. धीरे धीरे आप समझना, खुद से कोशिश करना कि हाँ जी
how we are going to manage all these things. बैकएंड पे क्रिएट करना है, होस्ट करना है, जो भी करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो. ओके. सर आपने जैसे AWS एजुकेट अकाउंट के लिए कहा था, हाँ हाँ हाँ. तो सर जैसे मैंने उस पर अकाउंट क्रिएट किया था, तो सर उसके बाद क्या करना है? बस अकाउंट क्रिएट हो गया तो जो हमने पढ़ा है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो. EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना एंड ऑल. यस सर. Okay, so if you have any question queries, then you can ask, or I think we are done for today.